Okay, good afternoon, everybody. Today I will start with the revolt of 1857. Okay, I will explain. I have already explained the consequences or background of the why this 1857 revolt was beginning. Okay, so one by one, can you all explain me one by one? First, one. Peasant uprising in your district. Okay. Okay, one by one. You. ब्रिटिशर्स को कम रेवेन्यू आता था, जो लैंड रेवेन्यू जो ये थे लैंड ओनर थे, उनके बीच में से जो मिडिल पर्सन रहते थे उनकी वजह से उनको कम प्रॉफिट मिला था। तो फिर उन लोगों ने बाद में सीधा जो उधर पीसेंट थे उनको आप ही रख लो और हम लोग को ऐसा पैसा दे दो। Okay. They started exploiting the farmers and the middlemen were also giving so people got very agitated and they started from all at least one point. Okay, I will first recap the land revenue policy. Okay, I will make you all revise again, and I will start with the causes of revolt 1857. Okay, so there were the three types of land revenue system. First one was permanent settlement, second was Ravisubari settlement, and third one was Malwari system. Permanent settlement was means the Jamindar was the landlord, and the permanent settle was made for the year of 10 years के लिए, ठीक है? How much? 110. Okay, means 91 out of 100 rupees, 91 you have to give to the Britishers and 9 rupees to Jamindar. Okay, so what happened? That whenever the peasant was paid to pay the taxes, that time they were go to money lender, and money lender what they have to do, they have to impose again the heavy taxes. Okay, then in this way farmer was exploited by three sides, by the British government, by Jamindar, and by the money lender. Okay, so what is the Raithwadi settlement by the Thomas Munro 1820. So what is this Raithwadi system? Here, what is this? Direct settlement with the peasants. 51% area were under the Raithwadi settlement. Okay. So according to this, 50% on the dry land, means 50% tax were imposed on the dry land, and 60% tax were imposed on the fertile land. Okay, fertile land. So again here, same point. Again here, farmer was exploited. Okay, so you can say here in Raithwadi settlement, peasant was honored. Okay, he can sell, he can auction, or he can gift the land to anyone. Okay, in Malwari settlement, 1822, introduced by Lord Holt Mackenzie. Okay. Under this, it was the composed of permanent settlement and Raithwadi. Why? Because the owner was peasant, but the land collection was done from the land collection was done from the panchayat, the head of village. Okay, we are not going to collect the tax from the peasant, so it is the panchayat of the headman of the village or panchayat of that village to collect the land revenue from everybody and has to pay for the Britishers. Okay. After the exploitation of the Zamindar, it
didn't trust the Indians, so then they went to British government itself started posting British officials to India. So the tax or whatever used to come to the British officials. Yeah. Wait, see. What I've done na that in Mahalwari settlement, there was the very means intermediates. I told you before Yes. in the Jamindari. Yes. Then afterward to the Raithwari and Mahalwari, the many intermediates, or you can say Jamindar, were avoided. Okay, they were all gone. They were all washed out. Now they appointed a one British official. His work was to only collect the revenue from the village. Means they was not going to everyone people. You have to give the tax. You have to give the tax. They have to go direct to the panchayat, or you can say the village headman, who was given the responsibility to collect the taxes or revenue. Okay, so here the responsibility was on panchayat or the headman, but the honor of land was peasant. Okay, so here is clearly that in revolt 1857, peasant will also participate and they will fight against the Britishers. Okay, so this was the point. First one was the land revenue was high. They were exploited by the British. They were exploited by the Jamindar. They were exploited by the moneylenders. Who was the farmer? They was now transformed into a worker. They was to work on the another land for not for the rupee, not for the money, but for the food. Okay, for a 3 times a day food. So what they will think, previous year or previous month, I was a land owner, and now I am a peasant. I am a slave, or I am a servant. I am working in anyone place or anyone farm. ठीक है, मैं कुछ साल महीने में खुद का एक खेत का एक मालिक था, लेकिन अब मैं खुद में नौकर हूँ. ठीक है, तो उसके अंदर एक दिमाग में उसको गुस्सा जाएगा. ठीक है, और रिवॉल्ट में क्या हुआ था कि ठीक है वहां से कोई नहीं है, साउथ के लोग तो मतलब वहां पर तो गए नहीं थे रिवॉल्ट. ठीक है, साउथ वाज टोटली साइलेंट, पंजाब वाज टोटली साइलेंट. व्हाई पंजाब वाज साइलेंट? बिकॉज द लीडर वाज मेड मुगल. ओके, द लीडर ऑफ रिवॉल्ट, व्हेन द रिवॉल्ट गॉन टू द दिल्ली साइड, they told chalo Delhi. Then the emperor was the Mughal emperor. Yeah, then they told him that you are our emperor, you are our leader, we are accepting your rule, and from now onwards you will lead us to fight against the British. So इसके लिए पंजाब इसमें participate ही नहीं किया because they was against the Mughals. And why did not South participate? Because there was the businessmen. Okay, if they will fight against the British, then their business will be destroyed. So what they want, and more one classes was there it was elite classes or educated classes. They used to think that only British can enlighten the Indians. They are here, they can enlighten our Indian people, so they are doing the good work. Then after 1857, because of elite people, the feeling of nationalism had spread in the India. ठीक है, रिवॉल्ट 1857 के पहले जो एलाइट क्लासेस जो थे वो पढ़े लिखे लोग इंडियन के, मैंने आपको बताया था ना कि ब्रिटिश का एजुकेशन पॉलिसी क्यों आया, जितने भी एक्ट थे मैं आपको आगे में और मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में. तुम लोग क्या बोलते थे कि भले ही ये खून से इंडियन हो लेकिन दिमाग से ब्रिटिश, ब्लड इंडियन हो लेकिन इसका ब्रेन ब्रिटिश का हो. तो उन लोग सोचते थे कि नहीं, इंडियन तो बैकवर्ड क्लासेस है, इन लोगों को कुछ आता भी तो है नहीं, अब इन लोग को एलाइट कौन करेंगे? अब इन लोग को एलाइट करेंगे ब्रिटिश ही. तो इसके लिए उन लोग ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया. लेकिन जैसे ही 1857 खत्म हुआ तो उन लोगों ने ही, जो भी इंडिया के जो भी जितने भी पिछड़े लोग थे, ज्यादा तो आधा से तो ज्यादा तो सब तो पिछड़े लोग थे ना, बैकवर्ड क्लास से, तो उन लोग को जगाया इन्होंने. इनके वजह से ही नेशनलिज्म की फीलिंग भी सारे इंडियंस में जगी, इन्हीं लोग के वजह. ठीक है, तो आगे मैं आप लोग को सब पॉइंट्स में समझाता जाऊंगा. इट वाज द समरी ऑफ क्लासेस. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट. रिवॉल्ट ऑफ 1857.
First one was say, I will say you one point also. Bullion drainage. British bullion drain in India. ठीक है, पहले क्या होता था कि मतलब ब्रिटिश यहाँ से सब जो भी गुड्स है, जो भी रॉ मटेरियल यहाँ पर लेके जाते थे। बुलियंस मतलब पता है आप लोग को? बुलियंस मतलब कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, तो पहले ऐसा होता था कि जिस कंट्री के पास ज्यादा बुलियंस होते थे, मतलब ज्यादा सोने के सिक्के, ज्यादा चांदी के सिक्के होते थे, कॉइन्स, तो उसे सुपर पावर माना जाए। जैसे कि अभी भी तो अमेरिका बहुत रिच है, तो उसको सुपर पावर माना। ठीक है, तो पहले भी जिस कंट्री के पास ज्यादा बुलियंस होते थे, ज्यादा गोल्ड सिल्वर होते थे, तो उन लोग को सुपर पावर माना जाता था। मतलब उनको एक इज्जत की निगाह से देखा जाता था कि ओके ये कंट्री बहुत स्ट्रांग है, दे आर वेल। तो जब ब्रिटिश लोग यहाँ से ड्रेन कर रहे थे, सॉरी ड्रेन नहीं, जब एक्सपोर्ट कर रहे थे सब चीज, इंपोर्ट कर रहे थे वहां पर ब्रिटेन में, तो यहाँ से गुड्स लेके जाते थे, रॉ मटेरियल। ठीक है, सिल्क, कॉटन और भी बहुत बहुत तरीके की चीज थी। और यहाँ से अगर वो लेके जाएंगे तो उन लोगों को तो पैसा तो देना पड़ेगा, तो उन लोग का बुलियन वहां से इंडिया में आता था। ठीक है, जब भी कोई इंडिया से परचेज करेगा कोई चीज, अगर मैं ही दुकान पे जाके उससे कुछ चीज परचेज करूंगा तो मुझे तो उसको पैसे तो देने ही है। तो ब्रिटिश जो भी चीज इंडिया से परचेज करते थे तो उन लोग को देना पड़ता था बुलियन। ठीक है, और वही चीज ले जाके वो लोग इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर करके, क्योंकि तब तक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आ चुका था ना। ठीक है, और सब फैल फैल रहा था, तो वहां पर मशीनें ज्यादा थी, तो वहां से यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाके इंग्लैंड में तब उसको पूरा फर्निश या फिनिश करके वहां पर ही बेचा जाता था। तो क्वीन ने बोला कि आप लोग क्या पागल हो गए? मतलब जिसके पास बुलियंस रहता है वो तो कंट्री तो अच्छा माना जाता है, सुपर पावर माना जाता है। और आप लोग हो कि आप लोग अपने बुलियंस खर्चे कर रहे हो। आप लोग कुछ ऐसा पॉलिसी बनाओ कि हम लोग का बुलियन हमारे पास वापस आ जाए। वापस तो आए ही, हम लोग ने वहां पर अगर 10 रुपए लगाए हैं तो बदले में वो 100 बन के आए। आप लोग कुछ ऐसा पॉलिसी क्यों नहीं बना? ठीक है, तो ब्रिटिश ने वही करना चालू किया अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1818। कब मोनोपोली कब खत्म हुआ? याद करो एक्ट को। 1813 में मोनोपोली खत्म हुआ था ना, ऑफ ट्रेड विद टी और चाइना तो चल रहा था। 13 में चल रहा था, टोटल खत्म हुआ। आई एम सेइंग ट्रेड इन इंडिया, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ट्रेड विद टी एंड चाइना। ठीक है, 1813 में खत्म हुआ था ना मोनोपोली, लेकिन जो टी विद चाइना ट्रेड वो चल रहा था, तो मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। मोनोपोली इन इंडिया 1813 में। ठीक है, तो 1813 में ये खत्म हुआ। बाद में पॉलिसी बनाया गया कि हम लोग इंडियन से 10 रुपए का रॉ मटेरियल लेंगे और ये चीज को इंग्लैंड में बनाएंगे, और इंडियंस के जो भी आर्टिशन है, जो भी हैंडीक्राफ्ट है, उसे डिस्ट्रॉय करेंगे और उन्हें फोर्स करेंगे कि आपको हमारे ही गुड्स लेने हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से 10 रुपए का चीज लेके जा रहा हूँ एज अ रॉ मटेरियल, एंड आई विल फिनिश दैट इन माय होम मीन्स इन इंग्लैंड, एंड आई विल सेल इट टू यू अगेन इन 100 रुपीज, इसका मतलब मैं आपको सीधा 90 रुपीज का मैं आपको चूना लगा रहा हूँ। सीधा 90 रुपीज का मैं आपको चूना लगा रहा हूँ, राइट? मतलब मैंने आपको 10 रुपए दिया और फिर से मैं इंग्लैंड अपना 10 रुपए के साथ में 90 में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट आगे आगे ऐसे ही पॉलिसी हम लोग बनाते रहे। ठीक है, सबसे पहला क्या था? सबसे पहला पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डलहौजी। डलहौजी सबसे शातिर बंदर, उसके पॉलिसीज इतने खतरनाक थे कि उसके पॉलिसीज के वजह से जो भी एरिया या जो भी किंगडम एनेक्स नहीं कर पाए थे ब्रिटिश, उसने बिना लड़े, उसने सिर्फ अपने पॉलिसी के बल पे वो सबको एनेक्स कर दिया। डलहौजी। ठीक है, उसका कौन सा पॉलिसी था? डिक्टेटोरियन ऑफ लैप्स। ठीक है, लॉ पॉलिसी ऑफ डलहौजी। ठीक है,
इसके हिसाब से क्या कि अगर किसी भी किंग का उसका खुद का बेटा नहीं रहा तो उसका एडॉप्टेड सन गद्दी पे नहीं बैठे, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब। ठीक है, एडॉप्टेड सन आर नॉट अलाउड टू सिक और ही कैन बी एक्ट एज द सक्सेसर ऑफ द किंग। ठीक है, एडॉप्टेड सन कैन नॉट बी द सक्सेसर ऑफ किंग। ओके, अगर वो आपका ही बच्चा है, ठीक है, तभी वो गद्दी पे बैठ सकता है। हाँ, उसका प्रॉपर्टी पे हक होगा उसके, मतलब जिस किंग ने उसे गोद दिया है उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी पे उसका हक होगा, लेकिन उसको किंगडम पे कोई हक नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि राजा साहब ने कहीं पर खरीदा होगा जमीन अपने लिए या कुछ गार्डन के नाम पे होंगे, तो ठीक है, वो सब प्रॉपर्टी उसका हो सकता है, लेकिन उसको किंगशिप नहीं मिल सकता। ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे राजा थे जिनके खुद के मतलब बेटे नहीं थे। ठीक है, तो डेक्रेटरी ऑफ लैब्स के हिसाब से उसने पहला एनेक्सेशन किया, कहां पर किया, ये सब आएगा, ये सब क्वेश्चन में एक बार या दो बार पूछा गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए कि मतलब डिक्टेटरी ऑफ लैब्स के हिसाब से कौन से राज्य को पहले और कौन से राज्य को लास्ट में उसने एनेक्स किया था। तो फर्स्ट वन वाज सतारा, सतारा को उसने एनेक्स किया था 1848 में। फिर बाद में सेकेंड वाज संबलपुर, ये है ओडिशा में 1850 में। और थर्ड वन वाज उदयपुर, यस उदयपुर इज इन कहां पर है, राजस्थान। फोर्थ वन इज नागपुर 1853 में। और फिफ्थ वन इज झांसी, झांसी इन 1854। ठीक है, देखिए पहले उसने डिक्टेटरी ऑफ लैब्स के हिसाब से सतारा को एनेक्स किया, संबलपुर को एनेक्स किया, उदयपुर को एनेक्स किया, नागपुर को एनेक्स किया और झांसी को एनेक्स किया। ठीक है, तो जो यहाँ का जो थे कौन थे पेशवा लास्ट के, बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन नाना साहेब पेशवा, उनको भी नाना साहेब है ना, किसने दिया था रिवॉल्ट, ब्रिटिश है उन्होंने ही ना। तो इनके जो थे यहाँ पर जो थे आएंगे वो नाना साहेब, नाना साहेब, तो इनको उन लोगों ने ये मतलब इनके एडॉप्टेड सन थे, किसके, बाजीराव टू के वो एडॉप्टेड सन थे। तो उनको पेंशन भी नहीं दिया गया था कि आप उनके मतलब एडॉप्टेड सन हो तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी किंगशिप, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी पेंशन, तो यू रन अवे फ्रॉम हियर। और इनके जगह पे किसी भी पपेट को बैठा दिया गया। ठीक है, तो जब वो पपेट मरा तब उनके एक भाई थे अप्पा साहब, वो पपेट का नाम मुझे कहीं हिस्ट्री में मिला है, लेकिन उनके जो ब्रदर थे अप्पा साहब, तो उनको गद्दी पे बैठना था। तो अप्पा साहब ने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुंबई प्रेसिडेंसी का अलग एक गवर्नर रहेगा, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी का अलग रहेगा। तो मुंबई प्रेसिडेंसी के उस समय गवर्नर थे जॉर्ज क्लार्क। ठीक है, उन्होंने लेटर लिखा डलहौजी को कि ऐसा है कि जो भी हमने पपेट बैठाया था सतारा में ऐसा पपेट, तो वो किंग का मौत हो गया, तो उनका जो भाई है अप्पा साहिब अब वो बैठना चाहते हैं गद्दी पे, तो व्हाट टू डू। तो डलहौजी ने बोला था कि नथिंग टू डू, अभी वहां पर कोई भी एडॉप्टेड सन नहीं बैठने वाला, अब वो सीधा हम ही एनेक्स करेंगे। और तब उन्होंने चालू किया था डिक्टेटरी ऑफ लैब्स। तो इसके हिसाब से पहला उन्होंने कब्जा किया था सूरत, बाद में संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड लास्ट में झांसी। झांसी को भी नहीं छोड़ा था, झांसी को भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट was this, first point of revolt was, reason was this, policy of डलहौजी। ठीक है, इसका बहुत ही खतरनाक पॉलिसी था। फिर बाद में एनेक्सेशन ऑफ दिस स्टेट, तो ये भी स्टेट का तो दिमाग तो खराब हुआ। यहाँ पर जो एडॉप्टेड सन थे इन लोग के, ये भी तो जाएंगे ना रिवॉल्ट में। तो फर्स्ट वन वाज दिस। ठीक है,
फिर बाद में सेकेंड वाज मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज पहले क्या होता था कि इंडिया में एक होता है ना अंधविश्वास था कि जो भी ओवरसी मतलब जो भी समंदर के रास्ते आ रहा है तो उसको हम अपने जाति में वापस नहीं लेंगे, वो हमारे लिए अशुद्ध हो गया। ठीक है, तो उस समय हम लोग उसे बाहर भेजते थे। हमारी तो आर्मी जाती थी, इट वॉज नॉट इंडियन आर्मी, इट वॉज अ ब्रिटिश आर्मी। तो जहां जहां पर वो जंग लड़ते थे अपने आर्मी को लेके जाते थे, तो उसमें इंडियंस भी जाते थे। तो ओवरसीज मतलब उन लोग जानते थे कि नहीं इन लोगों ने हमें हमारे धर्म से ये जानबूझकर ये भटका रहे हैं, ये हमारा धर्म भर नष्ट कर रहे हैं। तो अब इन लोग को मजाक सिखाना पड़ेगा, अब इन लोग को चखाना पड़ेगा, ये जानबूझकर हमें क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग को ये ओवरसी लेके जाते हैं वॉर के लिए। नहीं तो इनके पास खुद की आर्मी, ये अपने आर्मी क्यों नहीं लेके जाते कि हमें लेके जाते। और जब ये गांव गांव पे अपने अपने घर पे वापस आते थे तो इनको बहुत मतलब बहुत बहुत प्रॉब्लम होती थी। इनको कोई घर के अंदर नहीं लेता था, घर के अंदर क्या कोई इनको गांव के भी अंदर नहीं लेता था, क्योंकि नहीं तुम समुद्र के रास्ते आए हो, तुम अशुद्ध हो चुके, तो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग यू। ठीक है, डिफरेंट इन सैलरी एट इक्वल रैंक। ठीक है, ब्रिटिश और इंडियन सेम रैंक पे हैं, लेकिन ब्रिटिश को सैलरी रहेगा 1000 और इसको सैलरी रहेगा 50 रुपीज। इतना डिफरेंस, बोथ एट बोथ आर एट इक्वल रैंक, लेकिन सैलरी दोनों को डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इंडियन वेर इंफीरियर, मैक्सिमम रैंक वेर सूबेदार, मतलब इंडियन ज्यादा से ज्यादा वो सूबेदार के रैंक पे जाके वो रिटायर हो जाए। ठीक है, जैसे कि एक ब्रिटिश एक इंडियन अभी उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया है और दोनों का पोस्ट एक ही है, लेकिन 10-15 साल के बाद वो इंडियन सूबेदार तक जाएगा और ये ब्रिटिश रहेगा वो कर्नल ब्रिगेडियर तक वो चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इंफीरियरिटी वहां पर चल रहा था। ठीक है, यूरोपियन सोल्जर वेर डबल सैलरी व्हेन दे ओवरसी डिप्लॉयड। जैसे कि अब अभी भी चलता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने मतलब कहीं अगर डिस्ट्रिक्ट से कहीं बाहर पर वो चला जाता है या कहीं ओवरसी या कहीं फॉरेन में जाके उसको अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो सैलरी इज डबल। ठीक है, उस समय ब्रिटिश का भी ऐसे ही होता था। अगर ब्रिटिश आर्मी कहीं पर ओवरसी कहीं पर डिप्लॉय होती थी तो उनका सैलरी उनको डबल मिलता था, लेकिन इंडियंस को नहीं, उनको एक ही सैलरी मिलता, और जो एक सैलरी मिल रहा था वो भी ब्रिटिश से काफी कम मिल रहा था। ठीक है, और आपको पॉलिटिकल कॉस्ट तो मैंने आपको बता दिया, ये एक था पॉलिटिकल कॉस्ट। आर्मी कॉस्ट तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और पॉलिटिकल कॉस्ट का एक पॉइंट ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब। ठीक है, फिर बाद में आया एनेक्सेशन ऑफ अवध। जो अवध उसका नवाब से जो उन्होंने इलाहाबाद का ट्रीटी जो उन्होंने साइन किया था, फिर बाद में अब उन्होंने उसको एनेक्स कैसे किया, ड्यू टू द मिस गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ का जो ये राजा है ये अच्छे से काम नहीं करता, तो हम अवध को हम अब ले रहे हैं और हम अब इसे चलाएंगे। ये एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, विच स्टेट वाज एनेक्स बाय द ब्रिटिश इन द नेम ऑफ मिस गवर्नेंस। तो आंसर आएगा इसका अवध। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कैसे हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली ने लेके आए थे। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे कि हमें हमारा सोल्जर आपके स्टेट में डिप्लॉय रहेंगे और आपके जितने भी सोल्जर है आपको उनको भगाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे सोल्जर आपके स्टेट में डिप्लॉय रहेंगे और आपके जितने भी सोल्जर रहेंगे उन्हें भगाना होगा, और जितने भी उनके जो भी खाना पीना है वो सब आप ही दोगे। उनका जितना भी खर्चा है ट्रीटमेंट का या जो भी उनका वेजेस है वो सब आप ही उठाओगे, हम आपको एक पैसा भी नहीं देने वाला। ठीक है, तो अगर कोई किंग वहां पर फेल होता था तो उन लोग बोलते थे कि ठीक है आपको आगे कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप जो ये इतना बड़ा लैंड का टुकड़ा है ये आप हमें दे दीजिए। ठीक है, तो जब ब्रिटिश अवध में घुसे तभी जो थे डलहौजी उन्होंने सीधा डिक्लेयर कर दिया कि ये जो नवाब है उसको कुछ आता नहीं है, ये मिस गवर्नेंस कर रहा है और इसका जो भी है गवर्नमेंट अब हम ब्रिटिश संभालेंगे। और जब ब्रिटिश आर्मी ही उसका रक्षा कर रहा है, वो स्टेट के अंदर घुस गया
तो अब वो स्टेट ब्रिटिश से रिवॉल्ट कैसे करेगा? ठीक है ना। अब वो किंग के पास तो अब अपनी आर्मी तो है नहीं, ठीक है। अब वहां पर जाके घुस गई है ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश ने बोला है कि आपको आपको प्रोटेक्शन हम देंगे, आपको अंदर के रिवॉल्ट या बाहर का आपका जो भी दुश्मन आप पर हमला करेगा उसके खिलाफ हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपको सिर्फ आप जो पैसा अपने आर्मी को देते थे वही आप पैसा हमारे आर्मी को दीजिए, लेकिन वो पैसा बहुत बहुत हाई लेवल का रहता था। और अगर वो चुकते थे या इफ दे वर फेल्ड टू पे दैट अमाउंट, देन यू हैव टू गिव योर लैंड, ठीक है। आपको अपना लैंड देना होगा ताकि हम अपने आर्मी को अच्छे से यहाँ पर चला सके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब एक्सपेक्ट को समझो। यहाँ पर जब ब्रिटिश आर्मी घुसी तो इंडियन सोल्जर का जो जॉब था, जैसे कि राजा ने अपना जो रखे थे सोल्जर, उन लोग का जॉब चला गया, ठीक है। उन लोगों का तो जॉब तो आपको तो जाएगा ही जाएगा, उन लोगों का तो जॉब चला गया। फिर बाद में उन लोग भी जाके रिवॉल्ट में हिस्सा ले, ठीक है। ब्रिटिश सोल्जर आया, इंडियन सोल्जर का जॉब गया, तो अब वो क्या करेंगे, किसके वजह से गया, किसके वजह से गया, ब्रिटिश के वजह से गया, ठीक है। इन लोग भी क्या सोचेंगे, हम लोग राजा क्यों नहीं बन पाए, वो ब्रिटिश के वजह से नहीं बन पाए, अब हम ब्रिटिश को नहीं छोड़ेंगे। इन लोग का जॉब क्यों गया, ब्रिटिश के वजह से, ठीक है, क्योंकि इन लोग ने यहाँ पर घुसाया, आर्मी सब घुसा, अब हम इन लोग को नहीं छोड़ने वाले, अब हम लोग इन लोग को दिखाते हैं बराबर। फिर बाद में आता है इकोनॉमिक कॉजेस। आप लोगों को पता ही है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी, महलवारी, ठीक है। इसने पूरा फार्मर को एक्सप्लॉइट कर दिया था। जब एक्सप्लॉइट कर दिया था तब फार्मर were now worker working on the other land, not for the money but for the food, ठीक है, to fulfill his family's need, ठीक है। greed of bullion, ठीक है, हम जितना बुलियन वहां पर लगाते इंडिया में उससे 100 गुना हमें चाहिए। टैक्सेस वेर हाई एंड प्रोडक्शन वेर लो, ठीक है। फार्मर का प्रोडक्शन बहुत लो रहता था, फिर भी उन लोग का टैक्सेस हाई रहता था। एंड आर्टिशन वेर डिस्ट्रॉयड, आर्टिशन कब से डिस्ट्रॉयड होना चालू हो गया, पहले तो ईस्ट इंडियन कंपनी तो थी, वो तो डिस्ट्रॉयड कर ही रही थी आर्टिशन को, लेकिन जब चार्टर एक्ट 1813 आया, when monopoly was ended, then the many British company or you can say new industrialists were attract to India। और जब उन लोग पूरा जब अपना जो बोलते हैं ना एक बाढ़ की तरह आ जाता है पूरा ब्रिटिश कंपनी इन इंडियन, तब जो उन लोग का जो गुड्स है पूरा इंडियन मार्केट में कैप्चर हो जाएगा। और जो हैंड मेकिंग जो हैंडीक्राफ्ट है और जो हाथ से बनाया हुआ कपड़ा है, वो अगर 100 रुपए में मिल रहा है आपको, और जो फर्निश उससे भी अच्छा फिनिश क्लोथ आपको 10 रुपए में मिल रहा है, तो कौन सा लोगे? ऑफकोर्स फिनिश बाय द मशीन 10 रुपए का लोगे। तो अगेन हियर आर्टिशियन वेयर लॉस्ट देयर जॉब, दे वेर अगेन गो टू द विलेज। वो कहां से, टाउन से चले गए विलेज में जाकर हम जाके खेती करेंगे, ठीक है। अब जो भी कंसेप्ट है आप उसको कनेक्ट करना चालू कीजिए। आर्टिशियन ने लॉस्ट देयर जॉब, दे हैड माइग्रेट टू विलेज, फ्रॉम टाउन टू विलेज। विलेज में जाके अब हम खेती करेंगे, अपना किसानी करेंगे, अब हम अपने खाएंगे पिएंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हम हमारा खेत तो है, वहां पर जाएंगे तो वहां पर भी ब्रिटिश के लैंड पॉलिसी, फिर बाद में वहां पर भी एक्सप्लॉइटेशन चालू, हाई टैक्सेस, नहीं है पैसा, किसके पास जाएंगे, मनी लेंडर के पास। मनी लेंडर भी एक्सप्लॉइट करेगा, 100 के ऊपर 1000, ठीक है। फिर से उसका लैंड जाएगा और वो कहां पर जाएगा, दूसरे के खेत में काम करने, ठीक है। पहले वो आर्टिशियन था, बाद में बना फार्मर, बाद में बनेगा पीजेंट, और ये से सर्वेंट टू द अदर लैंड, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा, ठीक है, एडॉप्टेड प्रिंसेस, ठीक है, प्रिंस जो भी इनके थे राजकुमार, ठीक है, जो उनको गद्दी मिलने वाली थी लेकिन नहीं मिली, ठीक है। बाद में सेकंड कौन एक्सप्लॉइट हुआ, आर्मी,
इन, ठीक है, आर्मी। थर्ड कौन एक्सप्लॉइट होगा? फार्मर, वही पीजेंट्स या फार्मर। फोर्थ वन कौन एक्सप्लॉइट होगा? आर्टिशियंस। इन लोग क्यों रिवोल्ट करेंगे? सब्सिडरी अलायंस के वजह से, ठीक है। इन लोग क्यों रिवोल्ट करेंगे? सब्सिडरी अलायंस की वजह से। तो क्योंकि जिसने भी सब्सिडरी अलायंस, जिसने भी ब्रिटिश के साथ साइन किया है, उसे अपने किंगडम में जो भी इंडियन सोल्जर थे उसे निकालना है और ब्रिटिश को भरना है, ठीक है। तो इंडियन सोल्जर है लॉस्ट देयर जॉब, तो इन लोग भी आएंगे रिवॉल्ट में, इन लोग भी आएंगे, इन लोग भी आएंगे, इन लोग भी आएंगे। कौन नहीं आते? एलाइड क्लासेस, बिजनेसमैन एंड उस समय भी बहुत राजा थे जो चुप थे, और पंजाब भी पूरा साइलेंट था और साउथ भी पूरा साइलेंट, ठीक है। सोशल कॉजेस, मतलब कुछ हो या ना हो, सोशल कॉजेस ये सब तो हमने बर्दाश्त कर लिए, लेकिन हम सोशल कॉज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सोशल ही कॉज रहता है जो रिवॉल्ट को और जन्म देता है, ठीक है। ये सब तो हम लोग ने बर्दाश्त कर लिया था, ठीक है। लेकिन अब जो सोशल कॉज आएंगे, रिलीजियस के ऊपर जब बात आई, तब कोई भी नहीं सहन कर सकता, उसको में भी हम लोग ने सहन नहीं कर पाए, ठीक है। सोशल कॉज क्या था? सबसे पहला जो सोसाइटी पे वार था, मतलब ब्रिटिश ने तो अच्छा ही किया था सोसाइटी के लिए, मतलब कुछ हद तक अच्छा किया था, लेकिन हमें वो बुरा लगा। एंटी सती रिजोल्यूशन 1829, एंटी सती रिजोल्यूशन 1829 किसने लाया था? विलियम बेंटिक, और उनका साथ कौन दिया था? राजा राम मोहन रॉय। तो इंडियंस को, जो भी हिंदू थे, मतलब आपको जानते हैं कि जब सती होता है तो हस्बैंड के साथ साथ वाइफ को भी जला दिया जाता है, या उसको भी भेज दिया जाता है कि अब जब तेरा हस्बैंड जा रहा है तो तू भी अब जा, ठीक है। अब यहाँ पर इंडियंस को लगा कि इन लोगों ने इतना सब कुछ कर लिया, ये भी सब करके इन लोगों का पेट नहीं भरा, तो अब ये अब हमारे रिलीजियस पे भी वार कर रहे हैं, ठीक है। ये भी सह गए। फिर बाद में आया विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट 1856, जो डलहौजी ने लाया कि नहीं, विडो मैरिज फिर से मैरिज कर सकती है। फिर से इन लोग को लगा कि एंटी सती लाया रिजोल्यूशन, वो भी ठीक है। फिर से विडो रीमैरिज एक्ट ला रहे हैं, अब तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं तो कुछ करना पड़ेगा। और एक बात, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। हम लोग बोल रहे थे कि ये इंडियंस लोग, ये काले कोलो थे, इनके शरीर से बात मारते हैं, वी आर सुपेरियर, दे आर इंफीरियर, हु आर दे? उन लोग बोलते थे व्हाइट मैन बर्डन, ठीक है, कि तुम लोग अनसिविलाइज पीपल हो, तुम लोग को सिविलाइज करना ये हम गोरे लोगों का काम है, तुम हमारे ऊपर बर्डन हो, इसके लिए हम लोग आए तुम पर रूल करने, और हम तुम्हें यहाँ से सिविलाइज करेंगे, और हम तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे कि रहना कैसे और कैसे सोसाइटी को आगे चलाना है। तो हम लोग बोलते थे, एक बोलता ना, एक वर्ड को उन्होंने हाईलाइट कर दिया था, व्हाइट मैन बर्डन, ठीक है। फिर बाद में मिशनरी आए थे, ज्यादा उन लोग अपना क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे थे, अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो जो थे यहाँ के हिंदू या मुस्लिम या जो भी कह लो, तो उन लोग को लगा कि अब हमारे धर्म संकट में आ गए, ठीक है। तो कितने हो गए कॉजेज? टोटल 5 हो गए ना। तो सोशल कॉजेज भी निकल गए, ठीक है। अब बाद में आएंगे अदर कॉजेज, मतलब हो गया वो, उसको भी हम लोग कॉजेज मान सकते थे। ऑफिशियल लैंग्वेज वाज नाउ चूजन इंग्लिश इन 1837। जब ऑफिशियल लैंग्वेज चूज होगा, तो जो भी काम करेगा राजा के पास, ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसा हिंदी में, ऐसा पर्शियन तो पहले बहुत चलता था मुगल के दरबार में, पर्शियन। तो जो मुस्लिम का जो कारण था ना मेन 1987 के रिवॉल्ट में आने का, वो मेन कारण था पर्शियन लैंग्वेज। जो भी उन लोग को जो एलाइट क्लासेस थे, उन लोग
तो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे थे पर्शियन लैंग्वेज में, उन लोग का महारत हासिल था, तो उन बड़े बड़े ओहदों पे बैठे थे। लेकिन ब्रिटिश ने बोला कि जो भी हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज को निकालो, एबोलिश करो, पर्शियन लैंग्वेज को निकालो, एबोलिश करो, सब निकालो, सिर्फ एक होगा, वो क्या होगा, इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज सब जगह चलेगा। तो क्या हुआ, फिर से जितने भी थे लैंग्वेज में काम करने वाले बड़े बड़े क्लासेस के, वो दे लॉस्ट देयर जॉब। ठीक है, तो और एक था क्या था वो, इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज भी था ना, ठीक है, ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, फिर बाद में हुआ था संथल रिवोल्ट। 4 भाई थे। संथल रिवोल्ट वो जो है झारखंड साइड में हुआ था, जिसको बोलते हैं राजमहल हिल्स, वो आदिवासी थे। तो वहां पर क्या हो रहा था कि ब्रिटिश ने वहां की जो जमीन था ना, वो बड़े बड़े जमींदार को बेच रहे थे। मैंने आपको बोला था, याद कीजिए, वो पहले नीलामी करते थे, तो वो बेच रहे थे। तो जितने भी गुजराती, मारवाड़ी, जितने भी जमींदार थे, वो वहां पर जाके बस रहे थे, वहां पर सब कब्जा कर रहे थे। और जो भी वहां के संथाल थे, संथाल मतलब वो एक ट्राइब थे, वो एक ग्रुप थे ट्राइब का। तो उन लोग को लग रहा था कि ये हमारे एरिया में ये बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, who are they to rule on us, ठीक है, who are they to rule on us। और ब्रिटिश बोल रहे थे कि नहीं, ये तुम्हारा एरिया नहीं है, वो तुम देख रहे हो ना, वो बाउंड्री के अंदर ही तुम्हें रहना है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना। तुम लोग का दिमाग खराब हो गया कि इतने दिन हम यहाँ पर रह रहे हैं, इतने दिन हम यहाँ रिसोर्स यूज कर रहे हैं, who are they to stop us, who are they to rule us। अब इन लोग को दिखाना पड़ेगा। तो बाद में उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर दिया ब्रिटिश ने, लेकिन उन्होंने लड़ा। ठीक है, तो जब संथाल रिवोल्ट हुआ ना, तो एक बोलते ना, एक फीलिंग देश में पूरी बात चल गई, तो एक फीलिंग जगी कि नहीं, जब वो लोग लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। ठीक है, हम भी अब चैलेंज हमें लगता है हमको भी करना ही पड़ेगा। फिर हाँ, संथाल रिवोल्ट हुआ था 1855। संथाल रिवोल्ट हुआ था 1855 में, और 56 में टोटल उसको कोलैप्स कर दिया था, पूरा उसको क्रश कर दिया था, एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से क्रश किया था। ठीक है, तो उन लोग गुरिल्ला वॉर टेक्निक अपना, ठीक है, जो भी ब्रिटिश दिखा, बाहर निकलो मारो फिर से छुप जाओ, बाहर निकलो मारो फिर से छुप जाओ। बाद में उन्हें 56 में पूरा क्रश कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो इससे लोगों को पता चले कि जब वो संथाल जंगल में रहने वाले लोग जब इतने अच्छे से लड़ सकते, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। हम लोग को भी लगता है कि कुछ नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इतने सब होने के बावजूद इमीडिएट कॉज क्या था, ये बोलता ना कि ऐसा क्या होगा कि लोग एक पर एक मतलब पूरे पागल हो गए, पूरे भड़क गए। तो उसका इमीडिएट कॉज था एनफील्ड राइफल। ठीक है, एनफील्ड राइफल, जो भी अब आप देखते होंगे कि ऐसा खींच के ऐसा फेंका जाता था पहले। हाँ, जो भी वो गैरियट्स थे तो ऐसे खींच के फेंका जाता था। तो जो भी जो ऊपर का जो रहता था ना, वो पैक, ठीक है, पैक नहीं, पहले ऐसा, अब तो वो किया आ गए, ऐसा निकाल के फेंकते, हाथ से निकाल के फेंकते। तो पहले ऐसा मुंह से निकाल खींच के फेंकते थे ना, तो जो ऊपर का जो रहता था ना पैक, तो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया वो जो पैक रहेगा, वो काऊ का और पिग का फैट का बना रहेगा। ठीक है, काऊ का पिग का फैट से वो जो ढक्कन है वो बना रहेगा। ठीक है, गैरियट्स का। तो इससे कौन हट होगा, काऊ से हिंदू, पिग से मुस्लिम, क्योंकि उन लोग तो पहले ही इससे धंधा मानते हैं, उनको दांत से निकाल कर फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ से अब उन लोग का दिमाग चटक गया कि नहीं, अब हमें कुछ नहीं तो कुछ करना पड़ेगा। पानी अब करके ऊपर जा रहा है, तो द कार्टेज हैज टू बी टर्न ऑफ बिफोर लोडिंग इट इनटू अ गन। ठीक है, so Hindu plus soldier were Muslim soldier were reluctant to use the Enfield rifle. ठीक है, on 22 Jan 1857 प्लेस है कोलकाता में दमदम करके। ठीक है, तो यहाँ पर आर्मी ने यहाँ पर
कंसर्न राइज किया था कि आप जो ये कर रहे हो ये काफी गलत है और हम ऐसा नहीं होने देंगे, वी कांट यूज इट। ठीक है, तो ये ऐसा ही चलता रहा। तो अब मतलब प्लान पूरा बन चुका था कि अब हमें ब्रिटिश के साथ लड़ना है। नाउ दे आर डूइंग ओवर। तो एक होता है ना, एक मैसेज पास कर रहे थे, तो मैसेज वो पास करने के लिए यूज कर रहे थे चपाती। ठीक है, जैसे कि चपाती बना दिया, उसके अंदर कुछ मैसेज से चिट्ठी डाल के एक दूसरे को पास कर दिया, अरे ये लो चपाती खाओ, ये चपाती खाओ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्प्रेड पूरे हो रहे थे देश भर में, वो काम अब चालू हो गए थे चपाती स्प्रेड होने के। तो मैसेज वर स्प्रेड फ्रॉम द चपाती। ठीक है, तो ब्रिटिश को शक है कि नहीं कुछ नहीं तो कुछ होगा जरूर। ठीक है, नहीं तो पहले तो इन लोग ऐसे कुछ नहीं कर रहे थे, अब एक पर एक ये चपाती क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं तो कुछ होगा। तो जो ये बराकपुर के जो वहाँ के डीएम थे, डीएम कलेक्टर, तो उन्होंने ये इशू रेज किया था। ठीक है, ब्रिटिश के सामने, गवर्नर जनरल के सामने, कि सर कुछ नहीं तो कुछ होने वाला है, कुछ नहीं तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा क्यों लगा तुम्हें, क्योंकि ये चपाती सर्कुलेट करने वाले, आप देखिएगा, आप संभल के रहिएगा, कुछ नहीं तो कुछ होगा। चपाती इन लोग बहुत बहुत ये सर्कुलेट कर, तो उन लोग के लगे ये ऐसे ही बोल रहा है, कुछ नहीं होगा, जो होगा वो बाद में देख लिया जाएगा। तो एटलीस्ट मार्च 1857 वो दिन आ गया, मार्च 1857, रेफ्यूज टू यूज द कार्टिजेस। जो भी आर्मी के बंदे थे, दे रेफ्यूज टू यूज द कार्टिजेस। फिर बाद में 9 मार्च 1857, 19 बंगाल इन्फेंट्री। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के प्रीलिम में। ठीक है, ये यूपीएससी का प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 19 बंगाल इन्फेंट्री रेफ्यूज टू यूज इट। फिर बाद में जितने भी वहां के सोल्जर थे उनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया, पूरा एक साथ उन लोग को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। फिर बाद में कोर्ट मार्शल मतलब अब जो भी आर्मी के बंदे वो कुछ भी अगर गलत काम करते हैं तो उन लोग का जो पनिशमेंट या जो भी उन लोग का केस है वो सीधा कोर्ट, आर्मी कोर्ट में चलेगा। ठीक है, आर्मी कोर्ट में चलेगा, क्योंकि आर्मी का कोर्ट अलग होता है, पब्लिक का कोर्ट अलग होता है। तो अब आपका जो भी केस है वो आर्मी कोर्ट में चलेगा, और जो भी आपका पनिशमेंट है वो आर्मी कोर्ट तय करेगा। ठीक है, तो वो सब लोग का कोर्ट मार्शल कर दिया। ठीक है, ऑन 23 मार्च, तो ब्रिटिश को पता लगी नहीं अब हम लोग को कुछ अब करना चाहिए, तो ऑन 23 मार्च जनरल ग्रे एंसन, ठीक है, ग्रे एंसन ने कहा कि ठीक है, ही वाज कमांडर इन चीफ, उसने कहा कि ठीक है अभी तक ये सस्पेंड करके रखते, अभी इसे यूज मत करो, पहले ऊपर से रिपोर्ट आने दो। ऊपर से मतलब गवर्नर जनरल से अभी पहले रिपोर्ट आने दो, बाद में हम आगे डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं। अभी तक ये जो भी मैंने बोला है, वो जो नया एनफील्ड निकला है उसका यूज मत करो, आगे से रिपोर्ट आने दो, तब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तब हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बात बहुत आगे बढ़ गई थी, पूरा बात फैल गया था। तो फिर बाद में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 23 मार्च 1857 एट बरहकपुर 34 बंगाल इन्फेंट्री मंगल पांडे बॉन्डेड द ब्रिटिश ऑन 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को उनको हैंग कर दिया गया। ठीक है, 29 मार्च 1857 को बरहकपुर में 34 बंगाल इन्फेंट्री के जो सोल्जर थे मंगल पांडे, उन्होंने रेफ्यूज किया था, मैं गोली नहीं चलूंगा, और वो सन से लीड कर रहे थे, और उन्होंने ब्रिटिश को मार भी दिया था, बॉन्डेड भी कर दिया था, और 8 अप्रैल को 1857 को उनको हैंग कर दिया गया था। He was the first man who had sacrificed his life. ठीक है, तो जो भी हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, इतना हम लोग ने इंडिपेंडेंस का लड़ाई लड़ा, तो he was the first man who had sacrificed his life. ठीक है, जिन्हें पनिशमेंट दिया गया था ब्रिटिश के विरोध करने में। ठीक है, ये विरोध करने के वजह से उनको पनिशमेंट दिया गया था। He was the मंगल पांडे। अब जो गुस्सा है आर्मी में और देश के लोगों में पहले ही बढ़ गया। मंगल पांडे हुआ थी ब्राह्मण, वो मरे, ब्राह्मण के दिमाग में गुस्सा बढ़ गया कि देखो ये तो पहले तो हमारे धर्म पर नष्ट कर रहे हैं, काऊ और गाय और सुअर का मान, वो चर्बी का टोपी बना के, और ऊपर से
उसने जब उसका विरोध किया तो उसको सीधा फांसी लगा दी। अब ये सीधा बदतमीजी पे उतर चुके। अब इन लोग को अब ठीक अप करना पड़ेगा। तो 10th में 1857 मेरठ में 35 सिपो मतलब सिपाही, ठीक है, 35 सिपो ऑफ 20th and 11th Bengal regiment marched towards Delhi and they were marched and their slogan was चलो दिल्ली। ठीक है, तो वहां से वो बंगाल से सीधा कहां पर मार्च कर गए, दिल्ली की तरफ, और बोला कि चलो दिल्ली। और रास्ते में जो भी आएगा, जो भी मतलब जो भी ब्रिटिश आएंगे, जो भी ब्रिटिश रहेंगे, तो उसे हम काटते मारते हम चले जाएंगे। और रास्ते में बहुत सारे वो भी बेचारा ऐसा आराम से वो काटते मारते वो चले जा रहे थे। मतलब रास्ते पे जो भी आ रहा था देवर फिनिशिंग देम ऑफ किल्ड एनी ब्रिटिश, और उन लोग फाइनल पहुंच गए दिल्ली में। तो दिल्ली में कौन बैठा है? बहादुर शाह जफर, लास्ट एम्परर ऑफ मुगल। ठीक है, हाँ, वो ही वाज द लास्ट एम्परर। बाद में उनको रंगून भेज दिया गया था। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग ब्रिटिश से तंग है, तो यू आर आवर एम्परर, नाउ यू हैव टू लीड अस। ठीक है, हेल्प हेल्प वो क्या करेंगे? वो उनके पास वो खुद ही हेल्पलेस थे, तो वो इन लोग को क्या हेल्प करेंगे? उनको बस एक मूर्ति बना दिया गया कि यू आर नाउ आवर लीडर एंड यू हैव टू लीड अस। हम आपको ही अपना एम्परर समझते हैं और हम ब्रिटिश को कुछ नहीं समझते, और आपको हमें हेल्प करना होगा। जब सब लोग ने बोला तो बहादुर शाह को भी लगा कि हाँ तो ठीक है, अब मैं आगे रहूंगा। लेकिन इनको तो कुछ आधा भी था नहीं। बोले कि ठीक है, तो आज से हमें तुम लोग का एम्परर होगा, अब हम ब्रिटिश के साथ जंग करेंगे। और बनाया कमांडर वो जनरल बैग खान। ठीक है, बैग खान। ठीक है, जो भी एम्परर कौन था? बहादुर शाह जफर। अब उनका कमांडर कौन बनेगा? जनरल बैग खान। फिर बाद में 14 में 1857 को कैनिंग ऑर्डर ऑफ क्वीन रेजिमेंट ऑफ कलकत्ता। ठीक है, कि अब कैनिंग क्या करे उससे अच्छा 1857 के समय कौन था वाइसरॉय? कैनिंग। ठीक है, जो भी फिक्र मतलब जो भी यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट ज्यादा किसने किया था? डलहौजी ने। अब इसका ठिकरा सहेगा कौन? किसके सर पे फुटेगा? कैनिंग के ऊपर। लेकिन डलहौजी ने बहुत सारा काम भी करके गया, रोड बना के गया था, टेलीग्राफ, ठीक है, ताकि सब मैसेज और कम्युनिकेशन में सिंपल हो जाए। तो उसका हेल्प, भले वो सब रिवोल्ट डलहौजी की वजह से रिवोल्ट कैनिंग को सहना पड़ा, लेकिन जो डलहौजी बना के गया था उसका ही हेल्प लेके कैनिंग ने रिवोल्ट को दबा दिया, रिवोल्ट को खत्म कर दिया। ठीक है, तो कैनिंग ने बोला कि अब नहीं, अब जहां पर भी ब्रिटिश है सोल्जर, अब सब यहाँ पर आना चालू हो जाए, बंगाल में इकट्ठा चालू हो। और सबसे पहले उसने बुलाया था क्वीन रेजिमेंट को कोलकाता से। ठीक है, आपको आना है और यहाँ पर मेरे ऑफिस के सामने हाजिरी देना है। फिर बाद में हियर टेलीग्राफ टू द एब्स्टाइन द गवर्नर ऑफ बॉम्बे टू सेंड द फोर्स एंड द फोर्स वाज आल्सो ब्रॉट फ्रॉम बर्मा। ठीक है, मतलब कोने कोने में जहां पर भी युद्ध चल रहा था वहां से सब अपने सोल्जर मंगवा के वह इन लोग पर हमला करेगा जोरदार। ठीक है, जो भी डलहौजी ने किया उसको सहना पड़ा कैनिंग को। लेकिन जो भी अच्छा काम, रोड, रेलवे, टेलीग्राफ, ठीक है, जो भी था कनेक्शन, जो भी बिछा के गया था, जो भी फैला के गया था, जो डलहौजी फैला के गया था, उसका ही हेल्प लेके कैनिंग ने रिवोल्ट को अच्छे से दबा दिया। ठीक है, तब उसके लीडर जो देखते हैं, लीडर ऑफ रिवोल्ट, कानपुर से कौन उठेगा? जिनको पेंशन नहीं मिला था यहाँ से, कौन थे वो? नाना साहब। हाँ, तो कानपुर, यहाँ पर उनको कोई जानता नहीं था, उनको कोई यहाँ पर उनको राजगद्दी मिली, ना ही उनको पेंशन मिला। तो वहां से भाग के चले गए सीधा कानपुर। कानपुर में उनको बहुत सारे लोग जानते थे, वहां पर उन्हें कुछ दबदबा था कानपुर में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आज से मैं यहाँ पर राज करूंगा। ठीक है, मतलब अपने आप को वहां का राजा बना दिया।
क्योंकि इनका मतलब बहुत दूर तक कानपुर तक थे रिश्ते, तो कानपुर में उनके मतलब बहुत सारे चाहने वाले लोग थे, जानने माने वाले लोग थे, उन लोग वहां पर जाके बस के अपना वहां पर राज चालू कर दिया। कानपुर से कौन उठेगा? नाना साहेब टाटिया टोपे एंड अजीमुल्ला खान, ठीक है। बेगम हजरत महल फ्रॉम लखनऊ, और जो हेनरी रॉलेंस था रेसिडेंट इन लखनऊ वाज किल्ड, ठीक है। फिर बाद में बरेली से खान बहादुर, बिहार से कुंवर सिंह, अ मैन ऑफ 80 ईयर ओल्ड, ठीक है, he was a जमींदार, he was not a king। बिहार से कुंवर सिंह, he was a man of 80 year old but he had fought against the British। फिर बाद में फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और रानी लक्ष्मीबाई अफकोर्स झांसी से, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगा ना, ये किसने सस्पेंस किया था, कौन कहाँ से लीडर उठ के आया था, ठीक है, तो ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछेंगे। Suspension of revolt on 20 September 1857 ब्रिटिश कैप्चर दिल्ली, ठीक है। दिल्ली पे जो भी थे कब्जे करके बैठे, तो ब्रिटिश ने वहां पर कैप्चर कर लिया। वहां पर कौन था ब्रिटिश का लीडर? जॉन निकलसन, ठीक है, हु सीज द दिल्ली। नो, ही वाज द लीडर, ठीक है। कमांडर इन चीफ नहीं था वो, जो आर्मी को वहां पर लेके गया था, ठीक है। एक मतलब एक टुकड़ी आर्मी का वो लेके जा रहा है, और वो टुकड़ी का वो कैप्टन है हुआ या वो उसका लीडर है, तो उसने लीड किया था दिल्ली की तरफ, और दिल्ली को उसने सीज कर लिया था 20 सितंबर 1857 को। बाद में 8 जुलाई को तो हाँ ना, वो उन्होंने पूरा कब्जा करके रखा था दिल्ली को, पूरा इंडियंस ने घेर के रखा था, तो उसको ही तो छुड़ाने के लिए ब्रिटिश का वो फोर्स गया था। वो दिल्ली को तो छुड़ाने के लिए ब्रिटिश का फोर्स लेके गया था ना, जॉन निकलसन। वो गया वहां पर, उन लोग को मारा पीटा, उन लोग को हराया, और वहां पर अपना कब्जा, ब्रिटिश का झंडा ऊपर जाके भी महल है उस पे लगा दिया, ठीक है। रेड फोर्ट पे ब्रिटिश सही है, बहादुर शाह जफर को वहां से उठा के भेज दिया गया रंगून। तभी नहीं तभी भेज दिया गया जब पहले नहीं पहुंचे, मतलब अलग अलग सेना की टुकड़ी थी। तुम जाओ बरेली, तुम जाओ बिहार साइड को संभालो, तुम जाओ लखनऊ साइड को, और तुम जाओ दिल्ली साइड। तो इन लोग एक साथ जगह जगह पर चले गए अपना अपना सेना लेके, और देवर सक्सेसफुल इन एवरी डे। हाँ, मतलब सब लोग, तुम वहां पर निकलो, तुम वहां निकलो, तुम अपना सेना वहां पर लेके जाओ, और इन लोग पूरा फैल गए थे, ठीक है, ब्रिटिशर। फिर बाद में सर कुलिन कैम्पबेल कैप्चर्ड कानपुर एंड लखनऊ। सर कोनिल कैम्पबेल, ठीक है, कैप्चर्ड कानपुर एंड लखनऊ। बनारस, उस समय पहले वो बोला जाता था बनारस, ठीक है, अब बनारस, अब बोलते हैं बनारस, ठीक है। बनारस बाय द कॉर्नियल नील, NEIL, नील, कॉर्नियल नील, and Bahadur Shah was taken as the prisoner and sent to Rangoon. Royal prince were publicly shooted by the Lieutenant Hudson, ठीक है। जो भी बहादुर शाह के जो भी सन थे, उनको सीधा पब्लिकली बाहर बुला के, पब्लिक को बीचों बीच बुलाकर उनके सीधे सर पे गोली मारी, उनको उल्टा रेड फोर्ट के गेट पे ऐसा लटका दिया गया था कि आगे से जो भी ऐसा गुस्ताखी करेगा तो उससे सजा यही होगा, और बहादुर शाह को भेज दिया गया था रंगून, ठीक है, ठीक है। तो इसके कॉजेस ऑफ फेलियर क्या था? कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट, इसके फेलियर के कारण क्या था? कारण क्या था कि मतलब इतना बड़ा रिवोल्ट खत्म हो गया? एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था इनका, और रोड जो बना के रखा था, तो इनका इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गया, मद्रास से बॉम्बे टू हाँ, जल्दी पहुंचने के कोऑर्डिनेशन और सब अच्छा था, और इधर ही नहीं थे लोग चपाती में जो सही बात। बहादुर शाह, सबसे पहले बहादुर शाह वे ओल्ड
वीक एंड अनेबल टू लीड द रिवॉल्ट, ठीक है। लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड, जैसे कि मैंने बोला पंजाब चुप था, क्यों? क्योंकि वहां से वो मुगल उसको लीड कर रहा है, और साउथ वाज फुल्ली साइलेंट, ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन अनअफेक्टेड, बिजनेसमैन एंड जमींदार सपोर्टेड द ब्रिटिश एंड इंडियन सोल्जर वेर पुअरली इक्विप्ड, ठीक है। ब्रिटिश के पास तो सब कुछ था, गन, गोला बारूद, तोप, और हमारे पास क्या था? तलवार और भाला, ठीक है। रिवॉल्ट वाज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड विद नो सेंट्रल लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन, जैसे कि वहां पर कानपुर में नाना साहब लीड कर रहे हैं, लखनऊ में बेगम हजरतमल लीड कर रही है, बिहार में कुंवर सिंह लीड कर रहे हैं, दिल्ली में बहादुर शाह अपना, मतलब वो तो कुछ काम के थे नहीं, लेकिन फिर वो वहां पर लीड कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश का कौन था? सिर्फ एक, कौन था वो? कैनिंग था ना वो। इन सब लोगों को उसने इकट्ठा किया एक साथ, और उन लोग का ग्रुप बनाया, और उन लोग का कैप्टन भी बनाया और लीडर बनाया। उन लोग बोला तुम वहां जाओ, वहां जाओ, तुम वहां जाओगे तो वहां जाओगे, और तुम सब अपना कैप्चर करके मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो उन लोग को मेन कहां से आता था ऑर्डर? कैनिंग से, ठीक है। तुमको ऐसा ऐसा करना है, और इन लोग का कोई था ही नहीं ना, मैं यहाँ का लीडर, तू वहां का लीडर, तू ऐसे लड़ रहा, मैं ऐसे लड़ूंगा, ठीक है। एंड देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। लेकिन ब्रिटिश को पता चल रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, और वो हिसाब से अपना प्लान बनाते थे, और प्लान चेंज भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये सब देयर वर द सम कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट। So we don't have to go in detail about how these rulers forward like Shakti, नहीं, वो इतना क्यों जाओगे? like nothing about नो 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 नो, ये सब इतना डिटेल में। अगर कोई MPPSC दे रहा है तब, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, देन इट इज डिटेल्ड फॉर वो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट। हाँ, वो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे। जैसे कि अगर आप MPSC दे रहे हो, ठीक है, MPSC दे रहे हो, तो आपके लिए महाराष्ट्र हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, लेकिन UPSC के लिए नहीं, वो नेशनल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। तो इतना सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, कौन थे लीडर, उसे कौन दबाया था, वही सब, ठीक है। व्यू ऑफ रिवॉल्ट, मतलब सबका अलग अलग व्यू होता है, तो 3 जन का या 2 जन का मोस्ट इंपोर्टेंट व्यू है। तो व्यू के ऊपर भी क्वेश्चन मेंस में, यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडी सावरकर बोलते हैं कॉल्ड द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। वीडी सावरकर बोलते हैं इट वाज द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। RDSN सेन बोलते हैं डिस्क्राइब इट इज हैविंग द began as the fight for religious but ended as the war of independence, ठीक है। जो SN सेन थे, डॉक्टर SN सेन, वो बोलते थे कि ये तो चालू हुआ था रिलीजियस के नाम पे, लेकिन खत्म होते होते ये बन गया था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर बाद में डॉक्टर RC मुजम्मदार कहते हैं कंसीडर इट इज नाइदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये ना ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ना ये नेशनल था, ना ही ये कुछ नहीं था, बस एक बोलते हैं एक छोटा सा रिवॉल्ट था और कुछ नहीं था। और ब्रिटिश बोलते थे एज पर सम ब्रिटिश हिस्टोरियन इट वाज द पीजेंट रिवॉल्ट, इट वाज द पीजेंट रिवॉल्ट, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट वाज ओनली अ रिवॉल्ट, ठीक है। क्योंकि उस समय ना ही कोई नेशनलिस्ट की फीलिंग थी। नाना साहब क्यों गए थे? क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा था। झांसी की रानी क्यों लड़ रही थी? डिक्टेटरी ऑफ लैप्स के वजह से, ठीक है। उनका बेटा नहीं बैठता है गद्दी पे। कुंवर सिंह क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि ब्रिटिश फौज पहुंच गए थे बिहार में, उनसे उनका लैंड छीनने, ठीक है। लैंड किससे? कुंवर सिंह से छीनने, और किसके तहत? सब्सिडी अलायंस के। तो सब लोग तो अपने अपने कॉज के लिए लड़ रहे थे ना, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस कहाँ से आ रहा, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पर पीजेंट थोड़ी ना थे, यहाँ पर तो सब थे, राजा भी थे, पीजेंट भी थे, सोल्जर भी थे। और मेरे ख्याल से ये रिलीजियस वॉर भी नहीं था, ये मतलब रिलीजियस के वजह से हुए भड़क उठा, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो, यूपीएससी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट देगा और आपका ऐसा क्यों बोला गया, आप अपना व्यू दो।
मेंस में वो पूछ सकते हैं, जैसे कि VD Savarkar called as the revolt 1857 as the first war of independence. Evaluate your answer और critically analyze. तो आप वैसे लिख सकते, ठीक है? ओके, समझ में आया इतना तक? पक्का? ये हो गया। एक्ट है 1858 का, उसको खत्म कर देता हूँ, लगे बाद में, ठीक है? फिर बाद में इसके वजह से आता है एक्ट 1850, इसको रख कर दोगे? एक्ट 1858 Indian Council Act 1858. कानपुर से कौन रिवॉल्ट कर रहा था चांदनी? कौन लीड कर रहा था कानपुर से? हाँ, ऑफ कोर्स उनको वहां पर कोई इज्जत नहीं मिल रहा था, ना ही किंगशिप मिल रही थी, ना ही पेंशन मिल रहा था, तो वहां पर वो भाग गए। कौन कानपुर में कौन लीड कर रहा था रिवॉल्ट को? ही वाज द लीडर ऑफ कानपुर, जिसने 1857 का रिवॉल्ट लीड किया था। लखनऊ का? तो लखनऊ का कौन था जिसने लीड किया था? अभी भी मैंने सिखाया ना, बेगम हजरत महल। कानपुर में कौन था चांदनी कुमार? तो नाना साहेब और नाना फडणवीस कोई एक ही है, ये अलग अलग ये मुझे इतना डिटेल में पता है। क्योंकि एंग्लो मराठा में फडणवीस थे। नहीं बाजीराव का बेटा वो नाना फडणवीस ने इसलिए में कहती कि नाउ वो तो he was adopted. he was adopted son ना। No, I'm asking that to someone later. Find out है कि नाना साहब अलग है कि नाना फडणवीस अलग है, वो पूछना। बाजीराव टू का मतलब वो भी थे ना सन। बाजीराव टू का कौन था सन? वो ट्री मैंने ड्रॉ करके दिया ना, ट्री निकालो। बाजीराव के ट्री निकालो, लास्ट में देखो। माधव नारायण के नारायण का बेटा, उसके बाद नहीं रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव। हाँ तो वो तो उनका कोई बेटा ही नहीं था। नहीं आता ना, इतना ना सर से ठीक है डॉक्टर मेरे को ना कि नाना फडणवीस और नाना साहेब maybe his name they are Rao family. Rao. ओके चलो चालू करते हैं एक्ट 1858 का, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब यहाँ पर आके सब एबोलिश होंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आके सब एबोलिश होंगे। यहाँ पर कौन अपॉइंटमेंट होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है? अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। फर्स्ट वाज स्टेनली, ठीक है? फर्स्ट वाज स्टेनली, ठीक है? Was he was the member of
member of British Parliament, or you can say he is the cabinet minister. He was the cabinet minister of British Parliament. अब लंदन में रहते थे। हाँ, ये लंदन में नहीं, इन लोग सीधा वहां से पॉलिसी बनाते थे, ठीक है। और इसके बाद हाँ, वाइसरॉय का कंट्रोल करेगा। Secret appointment of Secretary of State, he was the cabinet minister of British Parliament, ठीक है। अब इसके नीचे आएंगे और 15 member काउंसिल। आपको धीरे-धीरे एक्सटेंड होते जाता है। काउंसिल के 15 मेंबर काउंसिल के नीचे आएंगे और 8 nominated by Crown and 7 elected by court of director, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। इसके नीचे इसके काउंसिल, हाँ तो यहाँ पर तो एबोलिश होगा ना, इन लोग को सिर्फ नहीं, यहाँ पर ही एबोलिश हो गया, इसी एक्ट में वो एबोलिश हो गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं है, वहां के सिर्फ मेंबर उठाए जा रहे हैं, वहां से सिर्फ मेंबर उठाए जा रहे हैं इनको असिस्ट करने के लिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फर्स्ट वाज स्टैनली, who was the secretary of state, he was the cabinet minister of ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल बनेगी, जिसमें से 8 नॉमिनेटेड बाय द क्राउन एंड 7 इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से 7 मेंबर उठाए जाएंगे, दे वेर ओनली फॉर एडवाइजरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और हाँ, मतलब वहां से उठाए गए थे, ठीक है, वो सेमी थे, वहां से उठाए गए थे और यहाँ पर रख दिए गए थे। और अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों यहाँ पर एबोलिश कर दिए जाए, ठीक है। बोथ वेर एबोलिश। नाउ जीजीआई मतलब गवर्नर जनरल, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, नाउ ही विल बी द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वो हाँ, he was now viceroy of India। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किससे रिपोर्ट करता था, किसे रिपोर्ट करता था? हाँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वो सीधा रिपोर्ट करता था, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या बोला था कि जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला था कि तुम सिर्फ कमर्शियल संभालोगे और पॉलिटिकल सब हम संभालेंगे। पॉलिटिकल कौन संभाल रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो भी ये थे वाइसरॉय, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो सीधा किसको रिपोर्ट करेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहले किसको रिपोर्ट किया करते थे? वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो किसको रिपोर्ट किया करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आएंगे, वो किसको रिपोर्ट करेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब जब वाइसरॉय आ जाएंगे, ये किसको रिपोर्ट करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और इनको एडवाइस करने के लिए कौन है? में 15 मेंबर काउंसिल, जिसमें से 8 वाज नॉमिनेटेड बाय द फ्लोर एंड 7 वे इलेक्टेड बाय द फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? फर्स्ट वाइसरॉय वाज कैनिंग, ठीक है। फर्स्ट वाइसरॉय वाज कैनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी था, इंडियन टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश would be governed in the name of Queen, ठीक है। पहले ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया, अब उसको गवर्न किया जाएगा किसके नाम पे?
क्वीन के नाम पे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो भी अगर जैसी मैं बात करूं, अभी अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करते हैं ना, जो भी पार्लियामेंट के जो भी रूल्स रहेंगे, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर भी उसमें काम कर रहे हैं ना, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को सब बात बताने के लिए ही एक्ट एज अ चैनल ऑफ कोऑर्डिनेशन ना, कि क्या हो रहा है पार्लियामेंट में वो जाकर उसको बताएंगे। तो ऐसा सेम टाइप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इंडिया में क्या होगा वो सीधा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बताएंगे किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ठीक है, एंड कैन सेंड अ सीक्रेट डिस्पैच टू इंडिया विदाउट कंसल्ट हिज काउंसिल। ठीक है, अगर उनको लगेगा कि मुझे कुछ सीक्रेट भेजना है डिस्पैच, तो वो किसी से परमिशन ले बिना या किसी से कंसल्ट करे बिना वो भेज सकते, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, ठीक है, आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडियन अफेयर। जो भी ये थे ऊपर के ये बंदे थे, ये थे वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, आस्क द क्वेश्चन ऑन अफेयर ऑफ इंडिया की आप लोग इंडिया के लिए क्या कर रहे हो, आपका पॉलिसी इंडिया के लिए क्या है। ठीक है, वाइसरॉय और गवर्नर ऑफ वेरियस प्रेसिडेंसी वेर अपॉइंटेड बाय क्रोन। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंसी के जो भी वाइसरॉय और गवर्नर जो भी थे, उन लोगों को कौन अपॉइंट करेगा, सीधा क्रोन। ठीक है, इंडिया मेड अ डायरेक्ट, नाउ इंडिया वाज डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी। ओके, रिमेनिंग अब कौन, नाउ रिमेनिंग इंडियन चीफ और इंडियन प्रिंस, जो भी 560 थे, दे वे नाउ दे कैन लिव अ इंडिपेंडेंट स्टेटस। ठीक है, अभी भी जो भी इंडिया के जो प्रिंस और जो भी चीफ थे, ठीक है, चीफ और फिर भी अभी छोटे मोटे थे 560 फिर भी कुछ बच गए थे, और मोर दे कैन नाउ लिव अ इंडिपेंडेंट स्टेटस। हम लोग को कोई भी दबाव नहीं देगा कि तुम आके यहाँ पर हमारे यहाँ पर अपना सर झुका नहीं, हम तुमको उड़ा देंगे अपने। नहीं, वो नहीं, जो पहले आ गया अब वो हमारा नया टेरिटरी। अब हम नया किसी को नहीं बना सकते, अब हम नया किसी को अपने कब्जे में नहीं कर सकते। हाँ, निजाम तो पहले से ही चला गया था। निजाम को ब्रिटिश ने नहीं लिया, अब वो सिर्फ उसका पपेट था, लेकिन ये सब प्रिंसली स्टेट हाँ, हो गया ना सर, वो सब लास्ट में लोग प्रिंसिपली स्टेट बन गए ना। हाँ, फिर 560 जो थे, 560 फिर भी इंडिपेंडेंट स्टेटस थे उन लोग के पास, प्रिंसिपली स्टेट के पास, और बोला गया था कि अब दोबारा किसी के साथ आप जंग नहीं करोगे जब तक हालात है वो बेकाबू ना हो जाए, और आप किसी को भी अपने कब्जे में, किसी भी राज्य को आप अपने कब्जे में नहीं लोगे। अब यहाँ पर और एक इशू था कि जो रिवॉल्ट क्यों हुआ था, आर्मी, इंडियन आर्मी ज्यादा थी और ब्रिटिश आर्मी बहुत कम थी, तो ब्रिटिश ने बोला था कि नहीं, अब इंडियन का जो रिक्रूटमेंट है अब कम करो और ब्रिटिश का रिक्रूटमेंट थोड़ा सा ज्यादा करो, एटलीस्ट 50-50 होना चाहिए। और सीधा बोला था कि हम बंगाल से, बिहार से, यूपी से हम आर्मी रिक्रूटमेंट करेंगे। हम लोग कहाँ से करेंगे, हम लोग करेंगे ज्यादा साउथ से और पंजाब से, क्योंकि पंजाब वाज लॉयल ड्यूरिंग द एंड साउथ वेयर आल्सो लॉयल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और इसके लिए इसके बाद उन्होंने रिक्रूटमेंट किया ही नहीं था, मतलब कर भी रहते तो बहुत कम, एक दो किधर से आ गए, बंगाल से या बिहार से, लेकिन उन लोग ज्यादा रिक्रूटमेंट कर रहे थे बंगाल एंड फ्रॉम साउथ, पंजाब है साउथ से और बंगाल से। और जो भी मैं बोल रहा हूँ बिहार और बंगाल, वो सब तो एक ही था, बंगाली था, और यूपी से हम लोग रिक्रूटमेंट ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, और उन लोग ने जो ये डिवाइड एंड रूल ऑफ अंडर, तो उन्होंने रूल रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद में ही वो लगाया था कि अब हम इन लोग को डिवाइड करेंगे, रूल करेंगे, और जो भी हिंदू मुस्लिम जो एक ही आर्मी में थे, एक ही रेजिमेंट में थे,
तो अब उन लोग को चेंज कर दिया, ये मुस्लिम रेजिमेंट, ये हिंदू रेजिमेंट, अब इन लोग डिवाइड हो गए, उन लोग एक दूसरे से लड़ेंगे और दोबारा ये हमारे सामने अब नहीं आएंगे। ठीक है, अब इन लोग हमारे से अब नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो ये हो गया 1858। अब आएगा इंडियन काउंसिल है 1861। These are also नहीं बताया मैंने कहा। नहीं बताया, अब मत कर दो। क्या कानपुर से कौन था सर? कंटिन्यू वाले फर्स्ट टाइम सर ने बताया था ये आगे वर्ड में याद है लेकिन वो बिहार का है ना। हाँ नहीं, मध्य प्रदेश। कानपुर कहाँ पर है? अब देखो बिहार का, ये बाद में मध्य प्रदेश, बाद में झारखंड। तो कानपुर से तो वैसे ही था ना, नहीं? You have to read every. तो एक टाइम होने से नहीं होगा, कौन सा था? नाना था ना, कानपुर से कौन था? ये नाना बताया नाना साहेब तात्या ठोके और एक खान साहब थे। ठीक है, और जो कुंवर सिंह थे वो बिहार के। Class 1 में टाइम का माहौल है। काय आहे की ट्रेन आहे? Class के टाइगर अपन बात करते हैं तो अपना रीडिंग पे आते हैं। हाँ। दिमाग में यार
ठीक है चलो चलो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ठीक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे पहले ठीक है अभी भी रहेंगे आगे भी रहेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या कोई इंडियन कॉन्फ्लिक्ट हाँ इंडियन कॉन्फ्लिक्ट नहीं वो ईयर बाय ईयर में खत्म करूँ ठीक है अभी भी होता है अनम्यूट हुआ ना यार ये तो आप बोलोगे और वेट हो जाएगा ये चालू लॉक कर दो बंद करो हाँ डायरेक्ट लॉक करेंगे ओके इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ठीक है सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या था स्ट्रक्चर वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ठीक है फिर बाद में वाइसरॉय ठीक है अब 1861 से अब 1861 से अब वाइसरॉय का जो ये है ना लोअर लेवल का जो भी कमिटी अब यहाँ से चेंज होगा पहले ऐसा कमिटी नहीं था लेकिन अब ये 1861 के बाद में ये चेंज होगा अब यहाँ पर ध्यान दो अब यहाँ पर जो भी मैं वाइसरॉय के नीचे लिखूंगा वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के वजह से हुआ है ठीक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाइसरॉय फिर बाद उसके नीचे आ गया वाइसरॉय के नीचे आएंगे कौन जी जी जीजी क्यों आएंगे अपना वो नो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे आएंगे वाइसरॉय के नीचे आएंगे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी तो अभी भी है ना वो तो अभी भी वो तो लास्ट तक रहेंगे वो तो लास्ट तक रहेंगे इसके नीचे वाइसरॉय के नीचे आएंगे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल और यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल ठीक है नाउ इंडियंस वेर अलाउड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडियन वेर इंडियन वेर अलाउड नाउ ओके और यहाँ पर एडिशनल मेंबर भी थे इंडियन डायरेक्ट लेजिस्लेटिव में नहीं है अब जो एडिशनल मेंबर आएंगे एडिशनल मेंबर में से भी जो अनऑफिशियल मेंबर रहेंगे तो अनऑफिशियल में इंडियन आएंगे ठीक है अब यहाँ पर और एक ऐड होगा एडिशनल मेंबर महाराजा ऑफ पटियाला ठीक है लेजिस्लेटिव में थे ठीक है अब यहाँ पर आएंगे कौन एडिशनल मेंबर इंडियंस आएंगे एडिशनल मेंबर में नाउ इंडियन वेर अलाउड ओनली इट वाज द ओनली बॉडी ऑफ एडवाइजरी ठीक है आप सिर्फ एडवाइस कर सकते हो कि ये सही है या गलत है ठीक है और आपके एडवाइस से देयर वाज नो बाउंडिंग ठीक है हाँ हम सिर्फ आपके सुनेंगे अच्छा लगा तो ठीक है और वो एडॉप्ट कर लेंगे नहीं तो नो डिस्कशन ऑन फाइनेंस ओनली तो आपको ये गाल दें हाँ नो डिस्कशन ऑन फाइनेंस ठीक है तो ये सब पॉइंट है लेजिस्लेटिव की और ज्यादा पावर किसकी पता कहते हैं एग्जीक्यूटिव की ठीक है और एग्जीक्यूटिव को कौन लीड कर रहा था वाइसरॉय ठीक है इसको भी वही लीड कर रहा था लेकिन
इसको इसमें ये ज्यादा पावर देकर रखा था और लेजिस्लेटिव वाज ओनली अ एडवाइजरी बॉडी एंड his advisory was not bounding on executive or viceroy. ठीक है, ये लोग एडिशनल मेंबर थे. नाउ इंडियन वेयर अलाउड एंड नो डिस्कशन ऑन फाइनेंस और बजट. ठीक है, जो भी फाइनेंस के रिलेटेड में जो भी हो आप डिस्कशन नहीं कर सकोगे. ठीक है, थ्री इंडियंस वेयर. अब यहाँ पर एडिशनल में भी थे दो पार्ट, एक ऑफिशियल और एक नॉन ऑफिशियल. एक ऑफिशियल और एक नॉन ऑफिशियल. ठीक है, और एक से नॉन ऑफिशियल तो बोलना बोलो नॉन ऑफिशियल. ठीक है, थ्री इंडियंस वेयर नॉन ऑफिशियल. ठीक है, थ्री इंडियंस वेयर नॉन ऑफिशियल. और ऑफिशियल में से भी वो किसको बैठाएंगे, अपने ही जो भी है अपने फ्रेंड्स, उनको ही वो ऑफिशियल में बैठाएंगे. और थ्री नॉन ऑफिशियल मतलब बाहर से भी वो अपने ही जो भी चट्टे बट्टे हैं वो लोग वहां से भी अपने ही उठाएंगे लोग, जो भी उनके लिए काम कर दिया, जो भी उनके खिलाफ नहीं जाते. तो एक मैं बात बोलूं कि ये सब भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था. ये सिर्फ इंडियन को दिखाने के लिए था कि ओके ठीक है अब हम लोग, हाँ हम आपको भी अंदर ले रहे हैं, कोई बात नहीं. देखिए सब कंट्रोल अभी भी ब्रिटिश का ही चल रहा था. अब यहाँ से क्या हो रहा था, दे इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम. पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस. मतलब अभी जैसे है फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर. अब यहाँ पर फिर से पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस. ठीक है, फाइनेंस वेयर डिसेंट्रलाइज. फाइनेंस वेयर डिसेंट्रलाइज मतलब अब जैसे कि अब हाँ नहीं अब अलग अलग से मैंने वहां से उठाया फाइनेंस. पहले क्या होता था कि मद्रास, बंगाल, जितने भी स्टेट थे वो सब टैक्स कलेक्ट करके भेजते थे किधर, वही मेन जो था वाइसरॉय को भेजते थे. और वो वहां पे उठा के सबको पैसा देता था कि तुमको कितना खर्चा, तुमको कितना खर्चा, तुमको कितना खर्चा. और सब वाइसरॉय उठा के भेजता था क्वीन के पास. ठीक है, और इवन से ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी इसको अपॉइंट करता था. लेकिन अब उनको सीधा एक ऑटोनॉमी दे दिया गया था कि ठीक है आप सब लोग को अपना जो भी खर्चा आप अपने पास रख लो, और रखने के बाद में आप हम लोग को जो हमारे पास फिर से मांगने की कोई जरूरत नहीं है. आप अपना खर्चा निकालो और जो भी खर्चा निकालने के बाद जो भी बचता है वो आप हमें दे दो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, और एक फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो जाएगा. तो अब आगे जितने भी एक्ट देखोगे, आगे अब जितने सारे एक्ट आएंगे अब उसमें धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो जाएगा. ठीक है, ये तो समझ में आया. ओके, अच्छा चांदी क्या बोलूं, ये यहाँ पर जो भी है लेजिस्लेटिव में फाइनेंस का डिस्कशन इन लोग कर सकते थे क्या? लेजिस्लेटिव मेंबर उस समय एक्ट 1861 के तहत वो फाइनेंस का डिस्कशन कर सकते थे. ब्रिटिश कर सकते थे. और व्हाट यू आर थिंकिंग लाइक दैट? लेजिस्लेटिव वो कौन सा भी हो, वो फाइनेंस का डिस्कशन कर ही नहीं सकते थे. ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ब्रिटिश थे, यहाँ पर भी कुछ ब्रिटिश थे, लेकिन इंडियंस कहाँ थे, एडिशनल मेंबर में थे. इंडियंस एडिशनल मेंबर में. यू आर सेइंग ब्रिटिश भी नहीं. लेजिस्लेटिव में कोई भी रहेगा वो फाइनेंस के ऊपर डिस्कस नहीं करेगा, वो बजट के ऊपर डिस्कस नहीं करेगा. आपका सिर्फ काम है हम लोग को एडवाइस देना, एंड योर एडवाइस इज नॉट बाउंडिंग. नहीं, वो लेजिस्लेटिव के लिए. हाँ वही मैं बता रहा हूँ, वो लेजिस्लेटिव के लिए था, वो सिर्फ इंडियन के लिए था, वो लेजिस्लेटिव के लिए था. इट वाज ओनली एडवाइजरी बॉडी. और जो भी मेन पावर था वो एग्जीक्यूटिव में था, और एग्जीक्यूटिव में एक भी इंडियन नहीं था. यहाँ पर एडिशनल मेंबर बनाया गया था, और एडिशनल मेंबर में इंडियन को लाया गया था. ठीक है, और लेजिस्लेटिव के पास ये पावर नहीं था कि वो कोई भी फाइनेंस रिलेटेड या कोई भी बजट रिलेटेड या कोई भी एक्सपेंडिचर रिलेटेड वो डिस्कस आप नहीं कर सकते. आप सिर्फ हमें एडवाइस दे सकते हो, एंड योर एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन अस. मतलब लेजिस्लेटिव का कोई भी एडवाइस was not binding on
एक्सिक्यूटिव और वाइसरॉय। ठीक है, तो ये बात याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि वहां पर सिर्फ इंडियंस नहीं बोल सकते नहीं, यहाँ पर लेजिस्लेटिव वो उनको लाओ। नहीं, अब वो पहले बनाते थे, वो पहले ये लॉ बनाते और इनको एग्जीक्यूट कर देते, लेकिन उल्टा हो गया, अब इनको सिर्फ एडवाइजरी बॉडी बना दी, क्योंकि उन लोग को इसमें इंडियंस को लाना था और वो सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हाँ हम आपको ला रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई भी पावर नहीं था, और जितने भी लोग बैठाए थे यहाँ पर वो सब इनके ही लोग थे। ठीक है, ठीक है, नहीं है, आया ही नहीं। कहाँ से Then वो मतलब ब्रिटिश का रहता उधर, देखिए। क्योंकि उधर इंडियंस आ गए ना, तो वो लोग आगे कर देते पहले बहुत चल रहा था और रिवॉल्ट होने के बाद में उनको समझ में आया कि हमें अब इंडियंस को भी दिखाना पड़ेगा कि नहीं हम लोग उनके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने नया एक्ट लाया 1861। ठीक है, उन्होंने बोला कि पहले, फिर बाद में बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब बनाया था 1858। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे कौन आएगा, वाइसरॉय का 2 काउंसिल, एक, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर और एक लेजिस्लेटिव मेंबर। ठीक है, सब पावर जो भी रहेगा वो एग्जीक्यूटिव के पास रहेगा। ठीक है, और लेजिस्लेटिव में उन्होंने एडिशनल मेंबर बनाया था। एडिशनल मेंबर क्यों बनाया था, क्योंकि हम बाहर से इंडियंस को ला सके। ठीक है, क्योंकि हमें दिखाना है कि हम इंडियंस के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडियंस को दिखाना है ना, ताकि कोई भी इंडियंस को नहीं, हमारा भी आदमी जाकर बैठा है वहां पर पार्लियामेंट में, भाई वाइसरॉय के साथ बैठा हमारा भी आदमी। लेकिन एडिशनल मेंबर में इंडियंस आके बैठे थे, तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव को कोई भी पावर नहीं दिया गया। जो भी फाइनेंस के बारे में या जो भी बजट के बारे में या कुछ भी एक्सपेंडिचर के बारे में ये लेजिस्लेटिव बॉडी डिस्कशन नहीं कर सकती थी। आप वो टॉपिक निकाल ही नहीं सकते थे। ठीक है, जो भी डिस्कशन फाइनेंस के बारे में था या जो भी बजट के बारे में था, तो लेजिस्लेटिव में वो डिस्कशन नहीं हो सकता था। लेजिस्लेटिव बॉडी क्यों बनाया गया था, इट वाज ओनली द एडवाइजरी बॉडी। उसे सिर्फ एडवाइस करना था कि जब भी ये कोई एक्ट बनाएंगे या ये जब भी कोई एक्ट पास करेंगे, तो इन्हें सिर्फ बोलना था कि ये एक्ट सही है या नहीं, या आपको ये पॉइंट ऐड करना चाहिए या ये पॉइंट आपको निकालना चाहिए। लेकिन इन लोग जो एडवाइस देंगे वो इनके ऊपर मतलब कोई भी बाउंडिंग नहीं था, जरूरी नहीं था कि ये वो एडवाइस को माने ही, या इनको अच्छा लगा, किसको अच्छा लगा, अगर एग्जीक्यूटिव को अच्छा लगा तब जाके लेजिस्लेटिव का एडवाइस मानेंगे, नहीं तो ये इनका एडवाइस नहीं मानेंगे। अगर मैं शॉर्ट बोलूं तो इंडियन स्पीच में लाया था सिर्फ दिखाने के लिए, और इंडियन में कोई भी पावर उनके हाथ में दिया नहीं। इसके लिए उन लोगों ने जानबूझकर इंडियंस को एडिशनल मेंबर्स में बनाया था, और लेजिस्लेटिव पावर को, लेजिस्लेटिव असेंबली को कोई भी पावर नहीं गया था, इसको सिर्फ एडवाइजरी बॉडी बना के रखा। ठीक है, समझ में? ओके, इधर उतने 15 मेंबर्स ही दे रहा था, इधर 8 और इधर 7। लेकिन अब यहाँ पर उन लोग ने एडिशनल में डाल दिया ना, हम लोग ने एडवाइस तो नंबर बढ़ जाएगा। आप उसमें आप तब जाओ, वो जो मैंने आपको सिखाया कि वो काउंसिल थे 58 में, वो इसको एडवाइस करने के लिए थे, वो गवर्नर जनरल के लिए एडवाइस करने के लिए वो नहीं थे। तो ये इसके कितने थे सर मेंबर्स? इसके वो 16 to 16 इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज हुआ था कुछ 16 इंक्रीज हुआ था, क्योंकि जो भी मैंने 15(8) में बोला था, दे वेर इलेक्टेड बाय द क्राउन एंड दे वेर इलेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये मत सोचो कि वो इन लोग को, वो वाइसरॉय को, अभी भी वाइसरॉय के पास 3 मेंबर का काउंसिल है, और वो जो है मैंने बोला था, वो जो 1958 में, जो वो मैंने बोला था 1958 में, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए था, और वो अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के
यही रहेगा, वो इसको इससे कुछ मतलब उसको कुछ मतलब नहीं, ठीक है। वो सीधा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही वो एडवाइस करे, वो इसके लिए नहीं था, ठीक है। वाइसरॉय का 15 मेंबर्स का होगा। हाँ हाँ You just said 15 members, not the 15 vice. प्लस वाइसरॉय 16 15 प्लस 1 Plus ये vice. 16 प्लस वाइसरॉय ना, फिर बाद में यहाँ पर ला दिया एडिशनल मेंबर, एडिशनल मतलब लगता है प्लस 3 थे, एडिशनल प्लस 3 थे। Three हम्म। यही सब कोई 7 में आ गए, मतलब 3 इंडियन ये और 4 ब्रिटिश के और 8 एग्जीक्यूटिव। अब बात करते नेशनलिज्म की, ठीक है, करूँ ना, ठीक है। नेशनलिज्म पहला कैसे, नेशनलिज्म Standard commission. पहला कैसे, काम से नहीं है, दैट विल कम, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ईयर के हिसाब से, ईयर के हिसाब से मुझे सिखाने दो, मैं आपका सब कवर करा दूं। नहीं तो अगर मैं चाहा तो मैं सीधा एक्ट को मैं सब एक साथ में ले लेता, तो फिर आपको कंफ्यूज होता था, वो एक्ट पहले ही हो गया, बाद में ये कहाँ पर चल रहा है। इसके लिए मैं ईयर बाय ईयर जैसे चल रहा है वैसे मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन आप तो पॉलिटिक्स को ये जानवर हो रहा है। मैंने सही कहा है। 47 की राय आया। ठीक है, हाँ, है? नेशनलिज्म कैसे फैला, ठीक है। सबसे पहले तो फार्मर, ठीक है, फार्मर का टैक्स बढ़ाया था, वो फिर से जाएगा मनी लेंडर के पास और वो फंसेगा डेब्ट ट्रेड में, उसका हो जाएगा लैंड लॉस, वर्क एज द वर्कर ऑन अनदर फील्ड और अनदर फार्म, ठीक है। तो ये जो फार्मर का हालत हो रहा था, कंसेप्ट को समझना, ये तो सिर्फ बिहार के फार्मर के साथ नहीं हो रहा था, वो तो सिर्फ बंगाल को फार्मर के साथ नहीं हो रहा था, वो तो सिर्फ महाराष्ट्र के फार्मर के साथ नहीं हो रहा था, वो नॉर्थ वाले के फार्मर के साथ भी हो रहा था, वो साउथ वाले फार्मर के साथ भी हो रहा था, ठीक है। सबका प्रॉब्लम है कि कौन था वो, मनी, ब्रिटिश, ठीक है। उन लोग क्या सोचे, ये जब से ब्रिटिश आए तब से हम लोग ने हम लोग को इन्होंने तंग करके रख दिया, ये जो फीलिंग्स थी वो सब में जगेगी, नॉर्थ में भी जो रहेगा उसको भी यही लगेगा और जो साउथ में रहेगा उसको भी यही लगेगा। फिर बाद में आएगा आर्टिशन चार्टर एक्ट 1813 के बाद आर्टिशन को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्योंकि बाहर के सब कंपनी जो भी थी नए नए इंडस्ट्रीज वो सब ब्रिटेन के इंडिया में आने लग गई, तो आर्टिशन वेयर डिस्ट्रॉयड। फिर से उन लोग यही सोचेंगे कि चाहे वो साउथ का हो चाहे पंजाब का या और इंडिया में कहीं भी हो, तो वो क्या सोचेगा कि जब से ये ब्रिटिश आया है तब से हम लोग का हालत खराब हो गया, हम लोग ने खो दिए। एजुकेटेड इंडियन नाउ, एजुकेटेड इंडियन बिफोर 1857 क्या सोचते थे कि ब्रिटिश इज हियर टू फॉर एनलाइटनमेंट ऑफ इंडिया, इन लोग ही है जो इंडिया को सिविलाइज्ड नेशन बना सकते हैं, नहीं तो इंडियन में इतना तरीका नहीं आता कि वो कैसे बैठ सकते, कैसे उन्हें बात करना, कोई ब्रिटिश है जो हम लोग को सिविलाइज कर सकते। लेकिन जब 1857 हो गया तो उनका भी आंख खुल गया कि ये 1857 हुआ क्यों, इसके पीछे कुछ तो होगा, ऐसी तो ही ना हुआ। तो फिर बाद में जो भी पढ़े, ऑफकोर्स जो कॉमन पीपल है उन लोगों को क्या पता कि एक्ट में क्या लिखा है, कैसे क्या होता है, उन लोग कुछ नहीं पता होता। तो जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने ही अपोज करना, उन्होंने एक्ट सब जो भी ब्रिटिश पास कर रहे थे उसे पढ़ना चालू किया, ये एक्ट में आखिर दिया क्या है, इसका फायदा क्या, इसका घाटा क्या है। तो जब एजुकेटेड इंडियन जब उसको जब पढ़ने लग गए तब उनको पता चला कि नहीं, हम लोग जो पहले सोच रहे थे, जो हमारे सामने एक इल्यूजन बना था कि ब्रिटिश बहुत अच्छे है, वो तो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस, ठीक है। ब्रिटेन में हम लोग जाके पढ़े थे तो वहां पर तो सब कुछ अच्छा था, सब फैसिलिटियां थी, सब इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड था, तो उन लोग अभी हमारे इंडिया के लिए उन लोग ऐसा ऐसा रूल निकाल रहे हैं, ठीक है। जो भी एक्ट पास होते थे काउंसिल वाले एक्ट, उन लोग सब पढ़े लिखे लोग थे, तो वो दे कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो उन लोग को समझ में आ गया, मतलब रियल फेस ऑफ ब्रिटिश वर नाउ एक्सपोज्ड टू एनलाइटेंड इंडियन। तो अब उन लोग जाएंगे, जो भी नॉर्मल लोग रहेंगे, जो अनपढ़ लोग रहेंगे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, या जो नॉर्मल लोग फार्मर ये तो रहेंगे, उनको जाकर समझाएंगे, ठीक है। उन लोग बोलेंगे कि देखो हमारे भी
पहले बहुत सारे राजा थे, अशोका थे, चंद्रगुप्त थे, मतलब उन लोग अपने पास्ट को पूरा बोलते हैं ना एक कलरफुल इमेज में दिखाते थे कि देखो हमारा पास्ट कैसा था, हम लोग एक सोने की चिड़िया थे और अब हम लोग क्या हो गए, हम हमें सब इन लोगों ने लूट लिया। ठीक है, तो अब इन लोग जाके सबको समझाएंगे, अब इन लोग बताएंगे कि हमारे साथ क्या हो। अब ये एनलाइटेड जो इंडियंस है, अब इन लोग ये आगे चल के वेरियस टाइप ऑफ जर्नल पब्लिश करेंगे, ठीक है, वीकली मैगजीन पब्लिश करेंगे, रोज के न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे। न्यूज़पेपर पहले वो इंग्लिश में पब्लिश नहीं करेंगे, पहले वो लोग पब्लिश करेंगे वर्नाकुलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, ताकि लोकल पीपल वो पेपर को पढ़े और उसे समझ पाए। ठीक है, तो अब यहाँ से अब एनलाइटेड इंडिया का जो भी एलाइट ग्रुप है इंडियंस का, अब उन लोग यहाँ से मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करना चालू करेंगे। ठीक है, फिर बाद में वर्कर्स लोग भी जो जहाँ पर काम करते थे, उन लोग को वहां पर लो वेजेस, एक्सप्लॉयमेंट ज्यादा, उन लोग को ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। मोर वर्क टू डू, तो वर्कर का भी कौन दुश्मन था? सिंगल वन एंड ओनली वन, ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश। तो अब ये सब लोग मिल गए अब इन लोग के बीच में, और बोलते हैं ना एक देश प्रेम कैसे जगेगा। तो जो भी पेपर पढ़ते हैं, अब मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख दिया, मराठी में मुझे मैंने आर्टिकल लिख दिया कि हाँ देखो बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, या मद्रास में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, पंजाब में भी कुछ ऐसा है। तो उन लोगों को क्या लगेगा, नहीं ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, ये प्रॉब्लम उसका भी, ये प्रॉब्लम उसका भी है। तो जो भी मतलब ये है ना एक फीलिंग नेशनलिज्म का, अब जाके जगेगा। इसके वजह से यहाँ पर कुछ हाथ जो रहता है वो एलाइट ग्रुप ऑफ इंडियंस का भी यहाँ पर कुछ हाथ रहता है। ठीक है, क्योंकि हाँ उसका एक शीट है, ठीक है, उसके ऊपर मतलब मैं आप लोग को एक मैं नोट पॉइंटर बना के दे दूंगा, वो एग्जाम में आता है, मतलब कौन कौन से जर्नल से कौन कौन उसके किसने पब्लिश किया था। ठीक है, न्यूज़पेपर कौन से थे, मैगजीन कौन से थे। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में वो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यू कांट अवॉइड इट, ठीक है, और यू कांट इग्नोर इट। नहीं नहीं, अब मैं उसको ऐड में कर दूंगा। फिर बाद में उन लोगों को लगा कि अब हम लोग को एक एसोसिएशन बनाना है। ठीक है, अब फीलिंग तो जग गई, अब लेकिन उसका यूज कैसे करेंगे, अब उसके लिए हम लोग को एसोसिएशन बनाना चाहिए, और यही सब एसोसिएशन बनते बनते लास्ट में बनेगी इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अब आगे चल के यही बनेगी, धीरे धीरे अब उसके ऊपर डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ बना था ना, वो भी तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले बना था लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी, जुलाई 1838 में। ठीक है, ये क्यों बना था? ये एक सिंपल एक जमींदार का एसोसिएशन था, जो भी जमींदार के जो भी प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और अपना प्रॉब्लम जाके ब्रिटिश को बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नाम से पता चल रहा है लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी, और इन लोग का मेथड क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन। लोग मारधार नहीं करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम लोग जाके अपना मांग हम पूरा करवाएंगे। इट वाज फॉर द सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, फिर बाद में इसके तुरंत बाद आया, इसका नाम अभी तक देखे आप लोग को नोट्स में ऐड करके दूंगा। ठीक है, फिर बाद में आया बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी गैजेट, वो आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, वो न्यूज़पेपर आ गया, फर्स्ट न्यूज़पेपर था बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये आ गया 1843 में। इसका क्या था? कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्चुअल कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इसका मेन एम क्या था कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और सबको इकट्ठा करेंगे, और हम जाके ब्रिटिशर्स को बताएंगे कि हम जो इंडियंस हैं उनको ये प्रॉब्लम है। ये कौन करेगा? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। फिर बाद में आएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अब यहाँ पर जो भी ऊपर के जो है ना, दोनों
बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी, ये दोनों मर्ज होके अब इन लोग बनाएंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ठीक है, अब जो भी ये तीसरा वाला आएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, इसके ऊपर जो भी मैंने दोनों बताया था वो दोनों मर्ज हो जाएंगे लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, दोनों मर्ज होके बनाएंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता इन 1851। ठीक है, टू कन्वे द इंडियन ग्रीवेंस टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, हम इंडियन का क्या प्रॉब्लम है हम आपको ब्रिटिश के गवर्नमेंट को हम बताएंगे। ठीक है, और इन लोग ने कुछ ये बोलते हैं ना, एक इन्होंने एक प्रस्ताव भी दिया था, एक एडवाइस भी दिया था जो कि काउंसिल एक्ट में माना गया था। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना, तो इससे रिलेटेड है। दैट सजेस्टेड द वेरियस रिफॉर्म इन द कंपनी अपकमिंग चार्टर एक्ट, लाइक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट लेजिस्लेचर, separation of judicial reform from executive function, salary of higher officer to be reduced, and abolition of salt duty and stamp duty। ठीक है, तो इन लोगों ने कुछ मांग रखा था। क्या मांग रखा था कि जुडिशरी को एक्जीक्यूटिव से अलग करो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट लेजिस्लेचर, एक सेपरेट लेजिस्लेचर आप एस्टैब्लिश करो। ठीक है, और सैलरी ऑफ जो हायर ऑफिशियल की जो सैलरी है उसे भी आप रिड्यूस करो, और जो सॉल्ट ड्यूटी और स्टैंप ड्यूटी है उसको भी आप रिड्यूस करो। जो आगे चल के इन लोग का जो एडवाइस है काफी इसमें माना जाता है, और ये ज्यादा एडवाइस माना गया था चार्टर एक्ट 1853 में। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 में इन लोग का बहुत ही ज्यादा जो भी इन्होंने कहा था इसको माना गया था आगे चल के। एंड इसके ऊपर ही 6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। अब यहाँ से इंडियन को उठाएंगे, वो ये किसमें उठाएंगे, वो चार्टर एक्ट 1856 में इन लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 मेंबर को उठाएंगे। अब कितने को उठाएंगे, अब आगे चल के जब भी वो एक्ट आएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन लोगों ने कुछ एडवाइस दिए थे, और इन लोग का जो कुछ एडवाइस था वो चार्टर एक्ट 1853 में उसको मान कर लिया गया था कि ठीक है हम इतना कर ही सकते हैं। फिर बाद में डेक्कन एसोसिएशन, ठीक है, इसका सिर्फ नाम याद रख लो, इसको लेके आए थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, देवेंद्रनाथ ठाकुर, डेक्कन एसोसिएशन टू मेक द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। बस, ठीक है, डेक्कन एसोसिएशन में क्या काम था, to make the representation from the every part of British India to British Parliament। ठीक है, डेक्कन एसोसिएशन कहाँ पर आएगा, यहीं पर महाराष्ट्र में था, और मेन उन लोग का था बंगाल में। ये जब खुला था तब इन लोग अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे, तो बंगाल में जहाँ पर वो खुला था वहां पर तो खत्म हो गया, लेकिन चालू कहाँ पर हो गया, डेक्कन में चालू हो गया। तो इन लोग का एक ही एम था कि वी विल रिप्रेजेंट द ईच पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। फिर बाद में आएगा मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1853। इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, लेकिन आप वो याद रखिए। ठीक है, जो बोल रहा हूँ मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको एक बार याद रखिए। फिर बाद में आता है बॉम्बे एसोसिएशन, इट इज द इंपॉर्टेंट वन। Bombay Association sent a petition to the British Parliament arguing a formation of the new legislative council to which Indian should be represented। ठीक है, इन लोगों का सबसे बेस्ट काम था, इन्होंने ब्रिटिश को एक अर्जी लिख के दिया था कि जो है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसको उसमें इंडियन का भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, conveyed a policy of exclusion of condemned the policy of exclusion of, पहले जो भी था आपने जो ब्रिटिशर को आपने ऊंचे पोस्ट पे बैठा है और जो भी इंडियंस को आपने नीचे पे बैठा है, तो उसको आप बंद करें और सबको आप इक्वली आप देखें। ऊपर के पोस्ट में जो भी सिविल सर्विस ऊपर की जो पोस्ट है वहां पर इंडियन भी जाना चाहिए, और ऊपर जो सैलरी पैकेज है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इंडियन का ब्रिटिश का सेम होना चाहिए। तो एक बार ये बॉम्बे जो है बॉम्बे एसोसिएशन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर बाद में आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि इसको किसने फाउंड किया था। ठीक है,
तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी इन लंदन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन किसने फॉर्म किया था? तो दादा भाई नेहरू जी इन लंदन। ठीक है, टू डिस्कस द प्रॉब्लम इनका एक ही था कि जो भी इंडियन का तो प्रॉब्लम था, यहाँ पर मैं ब्रिटिश के सामने अब जाके मैं अपने जो ब्रिटिश के लीडर है उनको मैं बताऊंगा कि ये हमें इंडिया में जाके कैसे ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने बनाया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फिर बाद में बनेगा पूना सार्वजनिक सभा टू सर्व अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। मतलब लगभग वही सब चल रहा था कि हम प्रॉब्लम जाके ब्रिटिश के सामने रखेंगे, ब्रिटिश के और पीपल के बीच में ब्रिज बनाएंगे। जितने प्रॉब्लम क्रिएट किया उन लोग को जाके क्या होगा, ये प्रॉब्लम अभी उन लोग जाके वहां पर उसको नहीं, वो क्या बोल रहा है कि जिसने यहाँ पर किया मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया उसको ही जाके वहां पर क्या बोल। तो उन लोग को एक नहीं उन लोग का तो मेन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था। उनको मतलब मेन उन लोग को शर्मिंदा करना था कि आप देखो आप यहाँ पर क्या क्या कर रहे हो, हम लोग को क्या कितना प्रॉब्लम होता है। उनका बेसिक काम यही था। दादा भाई नेहरू जी ने भी बहुत ज्यादा काम किया। आगे चल के आपको और भी डिटेल में पता चलेगा। देखिए जो भी ड्रेनेज ड्रेन ऑफ वेल्थ जो भी सामने लाके रखे थे ना, वो दादा भाई नेहरू जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो भी अब आगे में पढ़ाऊंगा वो उसमें सबसे बड़ा हाथ था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी का हाथ था। फिर बाद में आया इंडिया लीग एस्टेब्लिश किया गया था सिरसिर कुमार बोस in 1875 to instill the feeling of nationalism among the people। किसने एस्टेब्लिश किया था इंडियन लीग को? सिरसिर कुमार बोस ने। ठीक है, टू instill a feeling of nationalism in among the Indian people। फिर बाद में आया इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। इसे दो लोगों ने मिलकर चालू किया था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, टू यूनिफाई द इंडियन पीपल ऑन द कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम एंड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन ऑन ब्रिटिश क्वेश्चन और अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। Also organized the all Indian agitation known as the civil service agitation। ठीक है, फिर बाद में आया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्म बाय द फिरोज शाह मेहता प्लस केटी तेलांग एंड बबरुद्दीन तायबाग जी। रिएक्शन पॉलिसीज ऑफ लिटन एंड द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। जो भी लिटन के पॉलिसीज है उसको ऑब्जेक्ट करने के लिए और जो एल्बर्ट बिल का जो कंट्रोवर्सी था तो उसके वजह से आया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। No, wait. Okay. So today, done for lecture. Thank you for giving us precious time. Thank you.
बोलते कि हाँ फाइल ये फाइल चाहिए